small things which are required in exam, that also should be practiced well. मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता हो कि मिस्टेक हो रही है. एनवायरनमेंट के दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में. People who are attempting it for the first time, उन लोगों ने बेसिक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े होते. लास्ट टाइम भी मैंने मेंस दिया था, इस बार भी. तो मैं मंगल सर के पास आई कि सर मेरी ये सिचुएशन है, मुझे इतने मार्क्स कम मार्क्स है. Is this your first attempt or are you studying for a long time? जैसे पता ही है 3 stages examination के. Firstly, I'll give a background of examination. Book list, I think everyone knows, but I'll tell what I refer. So there are 3 stages, as everyone knows: prelims, mains, and interview. And the rank list or the merit list is based on mains and interview scores. So the most important thing to get into the list are the mains and interview stages. And prelims is the biggest filter and the most toughest thing, according to me also. For me also, it was a major roadblock. So for prelims, regarding the book list, I would like to tell that I followed the basic book list that everyone reads and everyone follows. Like for Polity Lakshmikant, for Modern Indian History Spectrum, and for Ancient History, for that matter, Tamil Nadu NCERT, then R.A. Sharma. So these were means general sources I followed. But different thing I cleared, what I did before I was not clearing prelims, and the time I cleared prelims was I made handmade notes, handwritten notes of Lakshmikant also, of Spectrum also. I think this is most underrated thing, and most toppers won't suggest this. But I was also not clearing prelims for my second serious, 2 serious attempts when I was studying very hard and giving my entire time, and post which also I was not clearing. So then what I changed was to make handwritten notes, not of the entire book, obviously. You are not going to copy the entire book, but for that matter to know what is important in polity or what is important from Lakshmikant that needs to be noted. So for that, I refer to the previous year questions. For example, if I used to do a chapter on fundamental rights, or for that matter, DPSP or fundamental duties, first I used to study from the classes which I took, basic classes. Then I used to read the Lakshmikant, and then I used to refer to the previous year questions. Post first reading only, I started referring to previous year questions to know what part is important from that also. For example, from DPSP, which section is more important, to know that from which section more questions come. For that, you need to refer to the previous year questions. So this practice I did multiple times. Previous year questions, then again I used to go to the basic material. Okay, this part is more important. Then again I used to see previous year questions. Am I able to attend that question post reading this Lakshmikant? If I was not able to attend that question, then I used to search it on YouTube or search it on Google. What extra I need to understand, or where my understanding is lacking. So to get a very clear cut understanding of the questions which are definitely coming in the exam. So I did this thing for the previous year questions and the static subjects. And Strategy can vary from person to person, but what worked for us yes, was to focus more on the previous year questions, yes, your basic sources. Everybody is referring to the same source, but you can have a different way of understanding. ऐसा हो सकता है कई बार कि आपको अपने पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि यार मैंने ये तरीका फॉलो किया. It is not working for you. So this exam is also about individuality. You find out your own path. You find out your own chart. You chart your own territory. कि अच्छा इस तरह से मैं पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा. कई लोगों को लिख के पढ़ना अच्छा लगता है. कई लोगों को डायरेक्ट किताब से ही पढ़ना अच्छा लगता है. Right or wrong? Notes बनाए तो जनरली notes ऐसा ना हो कि सिर्फ अपन कॉपी कर रहे हैं वहां से. There should be some value. For example, she referred to PYQs. तो PYQ देख के तो पता लगा अच्छा ये important काम है, right? So really you should follow. yes. This was for static and for every subject. And for current affairs, for prelims, specifically for current affairs, I did not segregate current affairs in prelims and mains. I used to read the newspaper religiously. For first 1 year, I used to read the Hindu, and then I shifted to Indian Express. So you can choose any newspaper, whichever suits you or whichever you understand better. So newspaper reading, I thought was very important. I used to skip monthly magazines, but at the end of the year, compilations come. For that matter, any coaching compilations, I used to do that. But newspaper reading, I used to do religiously. So that is why I could rely for the compilation. I think current affairs का सबसे बड़ा एक challenge रहता है ये generally. Yes. The main challenge that people face in current affairs is कि लोगों को लगता है कि source क्या है.
And source में generally we go for what the filtered sources that are there कि हाँ ready-made content मिल जाए कुछ या हम अखबार नहीं पढ़े हैं. Point is newspaper reading is very important because that forms the basic. Only then you can compile it using the compilation at the end of the year. Prelims के पहले compilation उठाया and you go through that religiously. उसका बहुत फायदा होता है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ेंगे इफ यू आर नॉट रीडिंग द ओरिजिनल न्यूज़पेपर्स तो आपका होराइजन ही डेवलप नहीं होता आपका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती आई थिंक और आप अगर कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में भी नोट्स मेकिंग आई थिंक इज नॉट दैट इफेक्टिव बट यू जस्ट बी इन टच विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट एंड देन कंसोलिडेट इट at the before the beginning of the prelims or the mains examination right. Yes, I also did not make newspaper notes because any news would repeat after 5 days, 10 days. For example, if India-Pakistan war is going on, so if any politician says something, editorial will come or explained will come. So we don't have to do with anything related to politics of the news, but with the substance of the news. Like for example, if India-Pakistan war is there, so we need to study about the Indus Water Treaty, why it was cancelled, what are its specifications, then what is the border between India and Pakistan, where Indus River flows, what are its Pre में भी question आ tributaries. सकता है. हाँ प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो मतलब एनी इशू जिसका चल रहा है तो उसका पॉलिटिक्स को साइड करके थोड़ा सा उसका स्टैटिक पार्ट देखना है कि वो कैसे आएगा. जैसे इस साल के मेंस के लिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है. तो मतलब जो एकदम न्यूज कोई चल रही है उसको कैसे हम मेंस और प्रीलिम्स के लिए यूज कर सकते हैं. सो दैट आई यूज्ड टू डू फ्रॉम फॉर करंट अफेयर्स. So this was for prelims, and for prelims also I give a very like majority of my time for solving tests, because I thought that prelims is all about questions. So if I would do questions, that only would make me ready for the prelims. So question solving was also a very important part of my prelims preparation. And before, like 4 months or 5 months before the prelims, I used to start giving weekly test. Then 1 month before prelims I used to, or 10 days before prelims I used to give test on the specific time of prelims examination. Like 9:30 to 11:30 I would give a previous year question I used to do. Same time window. Yeah, same time window mein. And similarly for 2:30 to 4:30 CSAT I used to give for like 10 to 15 days before prelims. So this would help me in training my mind that this time frame I have to do these questions. And also OMR practice also should be done when you are solving the questions, because that is most ignored part. And one OMR you mark wrong in the exam and your confidence will go down, and your, like, it is 2 hours game. And if you make a silly mistake, that would lower your confidence. So I think all small things which are required in exam, that also should be practiced well before the main prelims. And I would give like one set of any coaching test, one test series, and also another sectional test. If I feel that I'm not doing my 100% in any subject, for example environment, then I used to pick up from the market any 2-3 coaching test of environment, and I used to solve them. So giving test and then revising similarly with PYQ, that was my prelims approach. Any doubt regarding prelims? What was an approach for CSAT? CSAT, yes, that is a very important thing. I was from engineering background, so I had a basic means my CSAT was not that weak, but I did one lecture series from YouTube. Any lecture series you can do, and make notes about the formulas and all, lot of profit loss formulas and all the other formulas which are needed. Previous question also. Yes. That what are the areas that UPSC is focusing on? Yes, right. Like number systems. Number system is coming more often these days. So previous years also very important. For example, for very important for passages part, because in coaching passages are different as compared to the UPSC, and what UPSC is giving answers is also different. So for passages part, you need to analyze the CSAT paper very carefully and very with a lot of attention. Ki what UPSC is giving as answer. And Questions में इस तरह का what are the premises, what are the assumptions, and that you would only understand that what is the way in which UPSC perceives the comprehension. UPSC कैसे comprehension perceive करके क्या answer दे रहा है. कई बार क्या होता है कोचिंग का जो questions होते हैं वो कभी भी as it is repeat नहीं होता किसी भी पेपर में, चाहे वो pre हो चाहे वो
आपका CSAT हो चाहे GS हो, right? But it is the approach that actually you learn by going through the previous year questions and then you practice them with the watching this. Yes. Also give test for CSAT so that you get used to the speed also, because speed is also very important in CSAT. So test also I used to give. Yes. सो के जो ईयर्स थे जिसमें सिलेक्शन आपका नहीं हुआ और जिस ईयर मतलब दिस ईयर सिलेक्शन हुआ तो क्या डिफरेंसेस थे आपके अप्रोचेस में कि फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, क्योंकि समझ तो तब भी आ गया होगा, राइट। बट अभी जाकर हुआ। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था और इस बार भी दिया था, और उसके पहले मतलब एक अटेम्प्ट मैंने कोचिंग के साथ ही दे दिया था, तो वो आई वाज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड इन दैट। फिर उसके बाद के जो मैंने 2 सीरियस अटेम्प्ट्स दिए, तो उसमें मैंने एक पहली मिस्टेक की कि प्रीलिम्स को मैंने कम टाइम दिया, मैं ज़्यादा मेंस फोकस पढ़ती रही, और मैंने प्रीलिम्स 3 महीने पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप था वो सब मतलब मेंस लिख चुके थे। हाँ, तो वो एकदम प्रीलिम्स एक्सपर्ट थे, तो मुझे लगता था कि हो जाता है 3 महीने में प्रीलिम्स। तो मैं भी मतलब ग्रुप एक अच्छा होना ज़रूरी है, तो मैं भी आंसर राइटिंग और वो प्रिपेयर करती थी। तो मतलब मुझे फिर दूसरे अटेम्प्ट में समझा कि 3 महीने इज़ नॉट सफिशिएंट, 3 मंथ्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मेरे लिए तो भी नहीं है। मतलब खुद के सबका स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेस देखना। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस सबके अलग होते हैं। कोई लोग 1 मंथ में भी कर लेते हैं, कोई लोग 2 मंथ्स, मतलब उनका बैक प्रिपरेशन होगा उस लेवल का। बट मुझे समझ आया कि मैं कितना भी बैक प्रिपरेशन हो, मुझे 5-6 मंथ्स चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मतलब 2 आवर्स अगर मैं उसमें भी ऑप्शनल के लिए रिवीजन के लिए रखूँ, पर मुझे 3-4 मंथ्स एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स चाहिए, क्योंकि सीसैट भी करना है। मान लो मई में अगर फ्री है तो you start from 1st January. जनवरी, यस। 5 महीने तो एटलीस्ट आपको डेडिकेट हाँ, जिस नेचर का भी प्रीलिम्स हो रहा है, बहुत टफ आ रहा है, कंपटीशन इतनी है, तो फिर मैंने वो अप्रोच चेंज किया कि मैंने जनवरी में स्टार्ट किया। फिर एक में था कि मैंने टेस्ट कम दिए थे, या मैं टेस्ट लाइटली लेती थी, या मुझे डर लगता था टेस्ट में कि मुझे कम मार्क्स आ गए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बट फिर बाद में मुझे समझा कि यहाँ कॉन्फिडेंस लो होगा तभी तो वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं यहाँ पे अच्छा रख के क्या करूँ, मतलब प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस अच्छा रख के क्या करूँ, मुझे यहीं पे इम्प्रूव करना है। तो सारी गलतियां जो है वो टेस्ट सीरीज में कर लो। हाँ, जो गलतियां करनी है मुझे टेस्ट, मुझे 0 मार्क्स आए तो भी चलेगा, इधर ही आ रहा है ना। तो ये मैंने बाद में रियलाइज किया, क्योंकि पहले मुझे फियर होता था कि मुझे कम मार्क्स आ गए, मैं क्या करूंगी, फिर मुझे 2 दिन स्ट्रेस रहेगा, और मतलब वो होता है इसका। तो वो एक मिस्टेक की थी मैंने और एक अटेम्प्ट में। रियलिटी चेक से थोड़ा डरते हैं। डरते हैं, हाँ। That's a normal tendency. हाँ, नॉर्मल टेंडेंसी कि ये मेरी मिस्टेक है, कोई मुझे बता दे, इवन मुझे पेपर ही बता दे, तो मुझे उससे डर लगता है। तो वो एक मिस्टेक मैंने करी थी फिर दूसरे अटेम्प्ट में। फिर ये सब मैंने ऐसे सीख के कि टेस्ट भी देना है, और मतलब जैसे मैंने बताया हैंड रिटन नोट्स मैंने नहीं बताए थे, तो मतलब मुझे टाइम लगा है, पर ये सब आप अभी कर सकते हो कि जैसे मैं बता रही हूँ। Do a lot of hit and trial. हाँ, कि आप अपना ट्राई करो कि अच्छा मैं एक बार हाँ। पढ़ के और बिना नोट्स बनाए कैसे देते हैं, हाँ, परफॉर्म वेल, देन यू फाइंड कि अच्छा दिस इज माय स्ट्रेंथ। राइट। अगली बार आपको लग रहा है नहीं यार मेरे पढ़ने के बाद में खाली ऐसे नहीं होगा, मुझे लिख के याद करना पड़ेगा। दैट्स योर वे। यू विल फाइंड, आपको फाइंड आउट कि मेरा क्या तरीका है। यू विल हैव टू फिगर इट। लाइक किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो रीडिंग में हो जाता है। मुझे था कि मैं मतलब मेरे जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, जैसे राइटिंग इन्वॉल्व हो, तो मेरा सबकॉन्शियसली वो थोड़ा फिट होते जाता है, तो वो मुझे सूट किया। पर आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, और जल्दी टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि मतलब इतना टाइम ना लगाओ और जल्दी जल्दी कर लो, तो टेस्ट देना चाहिए, मिस्टेक्स जल्दी रेक्टिफाई करनी चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी खुद इवॉल्व करनी चाहिए। जैसे मैंने किया, दूसरे लोग मेंस प्रीलिम्स निकला हुआ है तो वो कर लेते थे, तो ये नहीं दूसरों का देख के नहीं करना कि अच्छा ये तो 3 महीने में कर रहा है, इसने पहले भी इंटरव्यू दिया है, तो मैं भी इसका फॉलो करती हूँ। ये मिस्टेक होती है देख के। तो मतलब खुद का देखना चाहिए, प्रीलिम्स के टेस्ट देते रहने चाहिए, और 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, मतलब 200 में से भी तो भी चलेगा। फर्स्ट टेस्ट में तो 100 में से 10 नंबर ही आएंगे, हाँ, ये बात मान के चलो। हाँ। तो उससे डरना नहीं। यू शुड यूज टेस्टिंग एज अ टूल, टूल फॉर इंप्रूवमेंट। यस। हम लोग क्या लगता है, इट्स अ जजमेंट ऑन आवर परफॉर्मेंस, व्हिच इज रॉन्ग। और क्रिटिसाइज नहीं करते रहना चाहिए कोचिंग की टेस्ट सीरीज को कि ये एकदम ही मतलब यूपीएससी के लेवल की नहीं होती, पर हमें तो हमारे प्रैक्टिस के लिए करना है, तो मतलब ये टेस्ट सीरीज भी खराब है, ये भी नहीं, कोई यूपीएससी के लेवल का नहीं है ये वो, मतलब एक टेंडेंसी आती है कम करने की। हाँ, कि कोई नहीं करना है, सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे तो टेस्ट ही नहीं देते, छोड़ो कोई अच्छी टेस्ट नहीं है तो टेस्ट ही नहीं देते। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि ठीक है एक क्वेश्चन इन्होंने सही नहीं बनाया, इग्नोर कर दो, 2 क्वेश्चन सही नहीं बना, इग्नोर कर दो, मेजॉरिटी तो ठीक ही ठीक ही होते हैं। हाँ, तो मतलब पीवाईक्यूज देख के हमें भी आइडिया आ जाता है एक लेवल के बाद कि ओके ये क्वेश्चन सही है। हाँ। और करंट अफेयर्स के कभी कभी हमने
न्यूज़पेपर में भी नहीं पढ़े होते, मंथली कंपाइलेशन में या ईयरली कंपाइलेशन में मिलते, वो टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं, तो वो भी कुछ वैल्यू एडिशन अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मतलब कुछ बेनिफिट्स तो है ही, और ऑब्वियसली प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि आप एलिमिनेशन ट्रिक लगा के देखो, या आप कुछ मतलब एलिमिनेट करके देखो, क्योंकि कितना भी कर लो 30-40 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही हेल्प करेगी कि उसके ऊपर के करने के लिए, कि प्रैक्टिस आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कि उसमें अपना ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो सीखा है, जो सब सब अप्लाई करके जो कंक्लूजन में निकला है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली, हम्म उसके लिए क्या अप्रोच है? क्योंकि क्वेश्चन करा ठीक है, आप सॉल्व किए, फिर करेंगे कभी, फिर तो स्किप हो जाता है माइंड हाँ, से, वो तो right. रहता है नहीं। हाँ फिर अगला जब टेस्ट करने जाते हैं तो उसमें अलग टाइप के में भी टॉपिक रिलेटेड हो, हम्म बट वो चीजें दिमाग में रहती नहीं, हम्म कितना भी हम ट्राई करें। हाँ तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उसमें किस टाइप का पूछा है, क्या उसका भी कुछ नोट्स मेकिंग शॉर्ट अपना कर ले एक पेज में, ऐसा कुछ करें या ना करें? जैसे आपने कहा कि 100 क्वेश्चंस है, वो हो नहीं पाते, जैसे मेरे से भी एक इसमें नहीं हो पाते थे, और हो भी गए तो फिर मैं उसका एनालिसिस है उसका ये नहीं कर पाती थी। तो मैं क्या करती थी कि इफ अगर मुझे ये वीक में पॉलिटी पढ़ना है, तो मैं पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ूंगी, और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मतलब एक टेस्ट में 4 दिन में करूंगी, सेक्शनल टेस्ट, जो पॉलिटी की सेक्शनल टेस्ट रहेगी। तो जैसे मैं आज पढ़ रही हूँ, तो मैंने आज 25 क्वेश्चंस की, मैंने उसका देख लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा, तो 25 क्वेश्चंस एनालिसिस करने में भी कुछ ज्यादा बर्डन नहीं होता है। तो मैं हफ्ते भर में 2 टेस्ट कर रही हूँ, और मैं पॉलिटी भी कर रही हूँ साथ साथ रिवाइज। मतलब ये नहीं कि मैं आज पूरा पॉलिटी कर एंड करूंगी फिर मैं टेस्ट दूंगी, तो फिर वो एकदम बर्डन लगता है कि 100 क्वेश्चंस हो गए, अब मैं इसका एनालिसिस कैसे करूंगा, अब मैं कैसे देखूंगी। और एनालिसिस पार्ट भी जैसे कैसे करना है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं कि डायरेक्ट आ गया कि राइट टू मैरी इज अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 21 ये मतलब ऐसे हो जाए, तो ये वाले क्वेश्चन जैसे तुम को पता ही है, तो उस क्वेश्चंस को स्किप कर दो जो इजी क्वेश्चंस है, जो ऑलरेडी है। पर जो नहीं पता है, जिसमें मिस्टेक्स हो रही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता हो के मिस्टेक हो रही है, वो सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं, कि ये तो मुझे पता था फिर भी मैंने इसमें मिस्टेक की, तो उसमें सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तो उसमें क्या देखना है कि ये मुझे पता हो कि मैंने क्यों मिस्टेक की, कि अच्छा ये आर्टिकल भी मुझे पता था, तो मैंने वहां पे अटेम्प्ट करते वक्त मिस्टेक किया, मेरी नॉलेज गैप है। हाँ, या नॉलेज गैप है। सबसे ज्यादा मतलब सिली मिस्टेक्स हम वही क्वेश्चंस में करते हैं जो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस को देख के एक्साइट हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे पता ही है, और उसको केयरफुली नहीं पढ़ते और फट से मार्क कर देते हैं। तो Generally, what I feel is कि मान लो कि आप एक टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं, मान लो सिंपल एग्जाम लेते हैं पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी बहुत अच्छे से, 100 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया किसी भी टेस्ट सीरीज, जब आपने 100 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें से डेफिनेटली 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने। सर मतलब आपका फोकस होना चाहिए 70 क्वेश्चंस पे जो कि लक्ष्मीकांत से है, and then your test is कि out of these 70 questions which I had already studied from Lakshmikant, what are the mistakes that I am committing? That is your performance. आपकी परफॉर्मेंस तो 30 सवाल को नहीं करना, तो 30 सवाल हमेशा यूपीएससी में भी ऐसे ही आएंगे, कई 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, पर जो आपको आता है उसको मैक्सिमाइज करना है, राइट और रॉन्ग। तो जब आप टेस्ट को जब आप चेक भी करें, मान लो आपने टेस्ट दे दिया फिर नंबर आ गए, लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इज वन पार्ट फॉर दोज टॉपिक्स जो किताब में नहीं है। जो टॉपिक आपने किताब से पढ़ा है, मान लो आपने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा है, टीपीएससी पढ़ा है, राइट, या आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, वो आपने जिस बुक से पढ़ा उसी को रेफर करें, वो एक तरह का आपको रिवीजन भी तो हो रहा है। जो क्वेश्चन आपने किया है, गलती की है, वापस से आप चेक करके दोबारा हो जाओ, तो वो आई थिंक इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस, एंड यू डेवलप अ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ द बुक इटसेल्फ। राइट। एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, एक तो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, और दूसरा करंट अफेयर्स से आएंगे। तो एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हो जाता है, और करंट अफेयर्स में कौन सी नदी पूछ ले, कौन सा एनिमल पूछ ले, ये मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है एनवायरनमेंट का करंट अफेयर स्पेसिफिकली। तो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी मुझे लगता है वो साथ साथ आपको करना चाहिए। जैसे मैपिंग आप करोगे तो वो एनवायरनमेंट का भी होना चाहिए, जैसे कौन से रामसर साइट्स है, वहां से कौन सी रिवर्स जाती है, कौन से स्पीशीज मिलते हैं, फिर इस बार रेड लिस्ट में कौन से स्पीशीज आए हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कौन से आए हैं। ये आपको करंट अफेयर्स का देखते रहना, करते रहना। आप कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो, मतलब ये चीजें करनी ही है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे ही। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से कोई क्वेश्चन आएगा ही, तो ये सब पता होना चाहिए। और स्टैटिक पार्ट तो बहुत मतलब इजी आता है, इकोटोन पूछ लेंगे या मतलब ऐसे, तो कोई भी। हाँ हाँ
तो जैसे आपके क्लासरूम लेक्चर्स होंगे एनवायरनमेंट के, आप वो भी बेसिक नोट्स रेफर कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट का बेसिक्स इजी है, पीवाईक्यूज भी आप देख लोगे। करंट अफेयर्स का पार्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो उसको ज्योग्राफी के साथ मैपिंग के साथ क्लब करके वैसे कर सकते हैं। अभी वो आपका कॉल है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे इतना रिलीजियसली और आपको लग रहा है कि 30 डेज में से मेरा 15 डेज न्यूज़पेपर मिस हो रहा है या 10 डेज मेरा मिस हो रहा है, तो आप मंथली कंपाइलेशन कर लीजिए। मंथली कंपाइलेशन का फायदा ये है कि मेंस प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन पैरेलली होती है, क्योंकि मंथली कंपाइलेशन में एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग रहती है कोई भी टॉपिक की, और ईयरली कंपाइलेशन जो रहती है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही रहेगी। मेंस के वक्त मेंस का आता है कंपाइलेशन, पर मंथली में वो दोनों क्लब टुगेदर रहते हैं, तो वो भी आपका फायदा हो जाता है मंथली कंपाइलेशन करने का। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होती है अच्छी बात है नॉट मंथली मैगजीन में सारे यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो वो सब सिलेबस तो कवर करना ही है एंड वो भी साइड से करना चाहिए आप सारे सारे सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट पे, क्योंकि करंट अफेयर्स प्रॉब्लम जो होती है करंट अफेयर में मंथली वाली मैगजीन में, पीपल वो अटेम्प्टेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उन लोगों ने बेसिक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा होता। जब आपने बेसिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो करंट अफेयर से कोई वैल्यू वर्ड राइट। कि जैसे आपने अभी तक पॉलिटी पढ़ी ही नहीं और आप पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उस करंट अफेयर कोई फायदा नहीं। जो सब्सीक्वेंट जब जब आप एग्जाम देते हो, एक साल आपने पढ़ लिया है, आपको बेसिक्स पूरा ब्रश है, तब मंथली मैगजीन आपको कई बार फायदा करती है। लेकिन फिर भी आई पर्सनली रेकमेंड न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर यू डू फ्रॉम अ कंपाइलेशन। वो उसमें क्योंकि आपने तो पूरे ईयर राउंड चीजें पढ़ी होंगी, तो आपको कई सारी चीजें आपके न्यूज रीडिंग के अंदर आपने टच में आई होंगी, यू बी एक्वेंटेड विद दोस टॉपिक्स एंड देन यू फाइनली कंक्रीट डू इट। क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मंथली मैगजीन में, टाइम बहुत खाती है। 150 पेज की है, 180 पेज की, 180 पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन है, this is not even a coherent story, there is a lot of information that is there, और इतनी information, is it possible for us to read it? No, right? And it would be far more easy for you to read a book कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लो, right? तो whatever works for you, you decide that. Monthly magazines are not bad also. But generally क्या होता है, इसमें बहुत अटेम्प्ट्स बढ़ गए, अब लक्ष्मीकांत वगैरह सब पढ़ी रखी है, तो अब क्या करें, अच्छा मंथली मैगजीन देख ली तो तो वो फास्ट आदमी क्विकली उसको स्किप थ्रू कर लेता है, 2-3 दिन के अंदर इसको देख ली फटाफट, राइट? सो यू डिसाइड अपॉन कि कौन सा आपको सूट करता है, राइट? जैसे सर ने बोला कि बेसिक टर्म्स नहीं पता रहती है बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे रेपो रेट नहीं पता आपको, तो फिर आपको बहुत एफर्ट्स लगेंगे न्यूज़पेपर भी पढ़ने में। एफर्ट्स स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा एफर्ट्स देना पड़ेगा, तो मतलब आप थोड़ा एफर्ट्स दो, सर्च भी कर सकते हो कुछ, और जब आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम भी कम हो जाएगा। हाँ, अभी भले आपको 3-4 घंटा लगे, पर फिर आपके जैसे जैसे सब बेसिक सब्जेक्ट्स कवर होंगे, आपको वो 1.5 आवर में हो जाएगा न्यूज़पेपर रीडिंग भी। यस। उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐसा लगता है कि जैसे हम कंपेयर करते हैं मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो ऐसा लगता है मैगजीन में इतना डाटा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन, पर न्यूज़पेपर में इतनी इन्फो नहीं मिलती, वो लाइक पॉलिटिक्स पे बेस्ड होती है। राइट। तो फिर ऐसा लगता है कि हमें मैगजीन ही रेफर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कम से कम हमें नॉलेज आ रही है और वो फैक्चुअल डाटा हम यूज कर सकते हैं मेंस में। तो फिर जैसे मैं बताऊंगी, अभी मेंस के पास सबके पास मटेरियल सेम है, सब वही पढ़ेंगे, मैगजीन्स वही लिखेंगे, जैसे मटेरियल सेम है, पर न्यूज़पेपर से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा 1 मार्क ज्यादा चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, मतलब जो मंथली मैगजीन बना रहे हैं वो न्यूज़पेपर से ही बना रहे हैं, पर वो कुछ निटिग्रिटीज मिस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, अभी मंथली मैगजीन पढ़ती तो मुझे उतना फायदा नहीं होता। मैं उसका एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे मनु भाकर का मतलब मनु भाकर पे जैसे ओलंपिक्स का ये आया था, तो उस पे ये आया था एक पूरा आर्टिकल, तो वो आर्टिकल इतने ब्यूटीफुली फ्रेम्ड और रिटन था कि मैंने सेम टू सेम इंट्रोडक्शन मेरे एसे में कॉपी, सेम वर्डिंग भी सेम, वैसे ही सेम मैंने इंट्रोडक्शन चिपका के आ गई थी। तो ये मुझे मंथली मैगजीन में कभी नहीं मिलेगा। जैसे एथिक्स के एग्जांपल्स हो गए, अभी एथिक्स की यूनिक एग्जांपल्स है, मतलब ये आपको एक्स्ट्रा एज लेने के लिए करना है। She has really good marks this year, 122 marks, and that's it, which is like very good. एथिक्स मतलब किसी भी चीज में एक्स्ट्रा एज जो चाहिए, मतलब बेस ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर करना ही है। आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी जो बेसिक है, वो जो मेंस कंपाइलेशन आते हैं वो आप करोगे, वो सभी करेंगे, बट एक्स्ट्रा 1 मार्क इन ईच क्वेश्चन मैटर्स, क्योंकि फिर 20 क्वेश्चंस में वो 20 मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे और वो एज मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। Newspaper में क्या होता है कि जो analysis होता है ना, जैसे हाँ, topic analysis, explained आ रहा है, राइट। editorial आ रहा है,
तो इट इज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन है राइट राइट ना, उसके अंदर बहुत वो इंसाइटफुल तरीके से डिस्कस करते हैं, दे बिल्ड इट लाइक अ स्टोरी एंड इट स्टेज विद यू इन योर माइंड कि अच्छा इन्होंने इस पर्सपेक्टिव से देखा इस चीज को। उसके अंदर क्या जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, मंथली मैगजीन इज लाइक योर सोशल मीडिया कि 1000 पोस्ट है आपको याद करना, 1000 डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स है, तो हमें लगता है परसेप्शन कि हम लोग बहुत याद कर पा रहे हैं, पर जनरली वो कई बार आपके दिमाग में बैठते नहीं, क्योंकि इतनी बार उनको जब तक आप और एक मैगजीन खत्म होगी तब तक अगली मैगजीन आ जाएगी, राइट। है ना। और मेंस में भी जैसे सर ने बोला कि ओपिनियंस का बहुत मतलब फायदा हो जाता है जो एडिटोरियल्स में आते हैं। जैसे मंथली मैगजीन में इतना नहीं आएगा कि जैसे तमिलनाडु के गवर्नर और गवर्नमेंट का टसल चल रहा था, तो एक्सप्लेन में या न्यूज़पेपर्स में आता रहता है कि गवर्नर की पोजीशन की आज क्या, इज इट नेसेसरी टुडे। तो ये सब जो मतलब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस है वो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। और मेंस का पेपर थोड़ा एनालिटिकल होता ही है, बेसिक तो आपका कवर हो ही जाएगा, जो बेसिक मटेरियल है वो तो करना है, पर ओपिनियंस हो गए या थॉट प्रोवोकिंग थोड़े मतलब क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसमें थोड़ा एज मिल जाता है। मैम ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस बोलते हैं जीएस का सब करते हैं, बट उसका तरीका क्या है? एक तो होता है सिंपली जस्ट हम सॉल्व करके देख रहे हैं, और उसको या तो सेक्शनल डिवाइड करना है इस तरीके से, जैसे ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है right. या फिर स्टैटिक पार्ट है, तो उसको एनालिसिस कैसे करना है? ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का ही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस में पहले तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना है कि बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट में सब्जेक्ट वाइज डिवीजन से ये इजी हो जाता है कि हम जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमको पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट उसके अंदर टॉपिक हाँ हाँ, टॉपिक वाइज में मिल जाता है, तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है पढ़ाई करने की। तो फर्स्ट एनालिसिस का इम्पोर्टेंट जो ये है इम्पोर्टेंस कि एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, या ये इतना रेलेवेंट नहीं है, कल जाके आ भी सकता है, मुझे पढ़ के रखना है, बट दिस इज माय डायरेक्शन। सो फर्स्टली यू विल गेट अ डायरेक्शन फ्रॉम पीवाईक्यू एनालिसिस। जो एनालिसिस बोलते हैं ये नहीं कि सॉल्व करना है बस कि हाँ इसका आंसर ये पता चल गया मुझे, दैट इज नॉट एनालिसिस। एनालिसिस इज गोइंग बैक टू योर स्टैटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि ओके दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड किस नेचर का क्वेश्चन बन रहा है, और कितना डेप्थ में जा रहा है, कितना इसके अंदर वो Right. लॉजिक टेस्ट कर रहा है आपका, इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, सो यू गॉट टू गेट इनटू दैट इंटेंजिबल थिंग जो आपको देख के एकदम प्राइमा फेसी नजर आता है। राइट, दिस इज फर्स्ट काइंड। और सेकंड काइंड ये है कि यूपीएससी की लैंग्वेज आप समझे, पीवाईक्यू से आपको लैंग्वेज समझेगी कि यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंड, कि वो फ्रेम करते हैं कोई भी पीवाईक्यू कैसे फ्रेम कर रहा है, कैसे ऑप्शंस फ्रेम कर रहा है, ये ऑप्शन ऐसे वर्डिंग में फ्रेम कर रहा है तो ये राइट है या रॉन्ग है। मतलब कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसको रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे उसमें कोई डेटा या फैक्ट है तो वो चेंज करना इजी हो जाता है, या कुछ मतलब ऐसा आप ये सब पीवाईक्यू से देख सकते हो कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं। और एग्जामिनर कैसे फ्रेम कर रहा है, लैंग्वेज यूपीएससी की समझ आएगी। जैसे आप बोलते हो ना कि मतलब कोचिंग की टेस्ट सीरीज में वो लैंग्वेज नहीं रहती, तो वो यूपीएससी में रहती है, तो इसीलिए वो हमें एक उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर की क्या लैंग्वेज है। तो वो ऐसा थोड़ा इन डेप्थ करना है, और ये भी मतलब समझना है जैसे एनवायरनमेंट में इकोटोन या कोई मतलब कोई भी ऐसा आ गया टॉपिक, तो उसमें ऑप्शंस क्या है वो भी देखने हैं, ऑप्शंस भी एनालाइज करने कि नेक्स्ट ईयर वही ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में आ जाता है, तो वो ऑप्शन पे भी थोड़ा गूगल सर्च कर लो या एआई का यूज कर लो कि वो ऑप्शंस का थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस लेने के लिए। कोचिंग ओवर होने के बाद आप रिवीजन कैसे करते थे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, वो सबसे प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब अभी कोचिंग करते वक्त, हाँ, उस करते वक्त में उसके बाद भी। ओके जैसे अगर कोचिंग चल रही है तो मेरा ये था कि आज के जो क्लास नोट्स पढ़ाए हैं वो मैं रिवाइज कर लूँ जो भी है, और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर ही कर पाती थी। क्लास नोट्स और न्यूज़पेपर हो जाता था क्योंकि न्यूज़पेपर में मुझे 3-4 घंटा लग जाता था, और फिर जैसे क्लास में ही टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं वो, तो उसका प्रिपरेशन पैरेलली चलता रहता था। तो कोचिंग के साथ इतना मेन स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं हो पाई थी, कोचिंग के साथ बस सिलेबस क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि अच्छा यूपीएससी का सिलेबस ये है, अच्छा प्रीलिम्स में ये होता है, मेंस में होता है, तो कोचिंग के साथ सिर्फ मुझे वही अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ऐसा होता है, सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब सब्जेक्ट की डेवलप हो गई थी। और पोस्ट कोचिंग जब मेरे पास पूरा टाइम था तो ये सेल्फ स्टडी, तो मैंने अपने टाइम डिवाइड कर लिया था। जैसे अगर प्रीलिम्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स दूर है तो या 1 ईयर दूर है, तो फिर मैं ज्यादा टाइम ऑप्शनल को देती थी, जैसे 80% टाइम मैं ऑप्शनल को दूंगी या मेन सब्जेक्ट्स को दूंगी, और 20% टाइम में कोई प्रीलिम सब्जेक्ट, 20% टाइम में भी मैं न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स इसको देती थी मोस्टली।
और अगर मैं कोई टेस्ट लगा रही हूँ, जैसे वीक में मुझे कोई प्रीलिम्स की टेस्ट देनी है, तो बस उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ या उसका थोड़ा पढ़ लूँ। तो मेंस प्रीलिम्स अगर दूर है तो 80% टाइम आप ऑप्शनल को दो। प्रीलिम्स फिर जैसे प्रीलिम्स को 7 मंथ्स दूर है तो फिर 50-50 कर लो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शनल और प्रीलिम्स का या जनरल स्टडीज का। और फिर प्रीलिम्स जैसे मैंने बोला कि 6 मंथ्स 5-6 मंथ्स, तो फिर एक्सक्लूसिवली 90% टाइम प्रीलिम्स को दो। 10% टाइम आप जो ऑप्शनल के नोट्स रेडी करके रखे हो तो बस सुबह रिविजन कर लो थोड़ा सा कि एकदम वॉश आउट ना हो जाए 5-6 महीने में ऐसे। Makes sense. हाँ, मेंस मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। और जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम भी मैंने मेंस दिया था, इस बार भी। तो लास्ट टाइम ऑप्शनल में मेरे बहुत कम नंबर थे, 188 मार्क्स थे। हाँ, और इस बार मेरे 260 हो गए। और मैंने इंटरव्यू भी दिया था तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था कि मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कुछ टाइम दे पाऊँ। और जब मेंस निकलता है तो ऐसा होता है इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो जाएगा, एक उम्मीद रहती है, तो हम इम्प्रूवमेंट में इतना ध्यान नहीं देते। तो मेरे पास सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम था। तो फिर मैं मंगल सर के पास आई कि सर मेरी ये सिचुएशन है, मुझे इतने मार्क्स Last कम time मार्क्स she है। was in touch with me. So हाँ that she came with the notes और सब कुछ से बना रखे थे. हाँ, नोट्स वगैरह बना रखे थे। जैसे एंथ्रो का बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर लिख लो हो जाएगा, मतलब तो वो सब मैंने करके रखा था पहले ही। जैसे ऑप्शनल को मैं ज्यादा टाइम देती थी तो प्रीलिम्स के पहले ही मैंने सब नोट्स वोट्स रेडी रखे थे। और मैंने पेपर भी कंप्लीट किया था, पर फिर भी मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। तो एक नॉर्मल नोशन होता है कि पेपर पूरा 100% हाँ, कंप्लीट करना चाहिए। So she had completed paper also in that. तो फिर मुझे प्रीलिम्स के बाद मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी कि इतने कम मार्क्स है ऑप्शनल में। और उसके 10 दिन पहले मार्क्स आते हैं. हाँ, वही। और इतने कम मार्क्स ऑप्शनल में, और मेरे पास एक ये भी था बेनिफिट कि मुझे इतना स्कोप है बढ़ाने का, मार्क्स स्कोप बढ़ाने का, पर वो कैसे बढ़ेगा। मतलब खुद पे अपन सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि मैंने तो पीवाईक्यू भी किए, मैंने तो पेपर भी कंप्लीट किया था, जो जो टिक्स रहते हैं ना, जो सब टॉपर्स बताते हैं चेकलिस्ट, वो तो मैंने सब किए थे। अब मैं क्या करूं या मेरी क्या गलती हो रही है। तो फिर मतलब मैं तो सर के पास आ गई थी नोट्स लेके, और मैंने सर को बताई थी मेरी इतनी इतनी प्रिपरेशन है, ये है। तो सर ने मुझे बस इतना बोला था कि अभी तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जिस नेचर का मतलब ऑप्शनल के पेपर्स आ रहे हैं मोस्टली अभी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ज्यादा जा रहे हैं, मतलब एंथ्रो का भी सिर्फ लर्निंग से, रॉट लर्निंग से नहीं हो पा रहा है। तो फिर जैसे सर स्लॉट करके देते थे मुझे कि इतने इतने यूनिट्स तुम पढ़ के आओ, तुम अंडरस्टैंड करके आओ, फिर मेरे पास आना कुछ डाउट हो। तो फिर डाउट रहे तो सर भी उसको हाँ एक्सप्लेन कर देते थे। और फिर सर वैल्यू एडिशन का लेक्चर भी लेते थे, तो उससे फिर मैं थोड़ा वैल्यू ऐड कर लेती थी पैरेलली। इस बार मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे थे क्योंकि मैं ज्यादा पीवाईक्यूज लिखने में मतलब ये थी, और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी क्योंकि Understanding develop करने में हाँ, focus है. क्योंकि इस बार मेरा ये ज्यादा मेन फोकस ये था कि मुझे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर इसका कोई कोई थियोरी का है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, कोई घुमा के भी क्वेश्चन है तो मैं लिख पाऊँ। मतलब और अंडरस्टैंडिंग से मुझे लगा कि लर्न करना इजी हो जाता है। मुझे पता होगा अगर मैलिनोस्की ने क्या क्या किया है, मतलब उसका मुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो मेरे लर्निंग में भी मुझे थोड़ा इजी पड़ता था अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो फिर ये मतलब मेन मतलब और इस बार थोड़ा 25 मार्क्स का पेपर छूटा है मेंस में. हाँ, ऑप्शनल में पेपर 1 में ही। तो मुझे तो पेपर 1 देख के लगा कि हो गया, अब खत्म, अटेम्प्ट गया। And she was मैं also planning to skip the paper. हाँ, मतलब मैं बाहर आके रोने लगी कि बस अभी तो नहीं होगा, अब हो गया। मतलब 25 मार्क्स का छूटना, मतलब सब बोलते कि पूरा पेपर कंप्लीट करना ही हो। तो मैंने बोला अब तो गया, ये अटेम्प्ट ही गया। फिर आधा घंटा रोई वोई, फिर मम्मी और कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला ये सबसे नहीं होगा, चुपचाप पेपर देना है, ये रोना धोना साइड करो। फिर फटाफट नेक्स्ट पेपर का रिवीजन किया, खाते खाते आधा टाइम तो रोने में चला गया था। तो और 2 घंटे का ब्रेक होता है, तो फिर रिवीजन करके फिर दूसरा पेपर दिया। तो मतलब पता नहीं था कि मतलब मुझे ऐसा था कि पता नहीं 25 मार्क्स का ही छूटे, पर ऐसा लग रहा था मेंस निकलेगा कि नहीं। मतलब जीएस में सब भूल गई थी, ऐसे लिखा है, जीएस लिखा है, अच्छा क्या बुरा क्या, सिर्फ वो मुझे सिर्फ जो निगेटिव रहता है अपने को सिर्फ वही हाईलाइट होता है, जो पॉजिटिव रहता है हम सब भूल जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा था मैंने मेंस भी निकलेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने 25 मार्क्स का छोड़ दिया है। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत मैटर करता है मेंस में। पेपर तो कंप्लीट करना ही चाहिए, मतलब जीएस में मैंने सारे पेपर्स कंप्लीट किए थे, पर कभी नहीं भी हो पाया तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है या गिव अप नहीं करना है। हाँ, मेंस के बीच में कभी गिव अप नहीं करना है। यस। आपने बताया कि आपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें आपने पूरा पेपर लिखा था, हाँ आपने पीवाईक्यू भी, तो हाँ, आपने गलती क्या करी थी उस वाले पेपर
अंडरस्टैंडिंग मुझे अंडरस्टैंडिंग का लगा, जैसे कोई घुमा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आ रहे पीवाईक्यू के, जैसे पहले ये था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो वैसा ही आ जाएगा, पर अभी वैसे नहीं आ रहे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आ रहे हैं, तो हम क्या वही लर्न करते हैं। तो जैसे डिफिनिशनिज्म पे आ गया या क्लासिकल एवोल्यूशन पे, तो ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जितना आता है वो लिख देंगे, अपने को जो जो याद है वो। तो एक गलती मैंने वो की, और दूसरी मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन की मैंने ज्यादा सोशल पार्ट के क्वेश्चंस ज्यादा सिलेक्ट किए थे लास्ट टाइम। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं आर्कियोलॉजिकल ज्यादा करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, मैं लिख दूं टाइम पीरियड तो वो पता ही है कि यही सही रहेगा। have no idea about anthropology. I'll tell you, there's a perception about anthropology कि anthropology छोटा सब्जेक्ट है नंबर 1। दूसरा perception है कि anthropology सिर्फ फटाफट किसी टॉपिक के नोट्स उठा के याद करे चले जाओ, 300 नंबर आया, right? And that thing I think is changing nowadays, right? Because without understanding you'll never be able to get good marks in examinations. She also was preparing from this perspective only. जब हम मिली हुई थे मैंने कहा कि तुमने लिख तो बहुत सारा लिया है, याद होगा कि नहीं होगा, कैसे याद होगा? Without understanding you'll not be able to remember it and express it in exam, right? मेरा पर्सपेक्टिव है, तो मेरे को लगता है आर्कियोलॉजी ज्यादा मुश्किल है, सोशल हाँ मुश्किल है, क्योंकि रॉड लर्निंग पार्ट ज्यादा है। उसका सोशल तो मेरे पास आ रही है। सोशल आसान लगती है, जैसे मुझे भी आसान लगती थी, इसलिए मैंने लास्ट अटेम्प्ट में वही किया था कि मैरिज फैमिली किनशिप डेफिनेशन कर लो, पर उसमें कंपटीशन इतनी ज्यादा टफ होती है सोशल में कि दूसरा इंसान मेरे से 2-3 कर ज्यादा लिख देगा, और मैं क्या लिखूंगी। आर्कियोलॉजिकल पार्ट में यही है कि टाइम पीरियड लोअर पैलेलिथिक का फिक्स्ड है, ये भी वही लिखेगा, मैं भी ये लिखूंगी, टूल्स फिक्स्ड है, मैं भी वही, ये भी वही, तो वो एज मिलना मतलब हाँ हाँ, जो सर ने बताया वैल्यू एडिशन में। तो मतलब आर्कियोलॉजी में ये है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर करके भी करंट रेलेवेंस तो लिखते ही थे उसमें, जैसे कोई नया एक्सकेवेशन आ गया तो वो कितना ही रहेगा, 2 पेजेस का रहेगा आर्कियोलॉजी का, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा एक एज दे सकता है। हाँ आर्कियोलॉजी के मैं एक बार शेयर भी कर दूंगी, जिसका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है वो देख सकता है। तो मतलब मैंने एक पैलियोलिथिक का लोअर पैलियोलिथिक, मिडल और अपर पैलियोलिथिक ऐसा टेबल बना लिया था, और मैंने सब हेडिंग्स डिसाइड कर लिए थे कि मैं टाइम पीरियड लिखूंगी तीनों के भी। फिर मैं मतलब मुझे सब हेडिंग्स ज्यादा लिखने थे ताकि ऐसा दिखे कि थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखे, अच्छा दिखे। हाँ तो मैं इनहेबिटेड बाय लिखती थी कि किसने इनहेबिट किया है, हाँ, या होमो इरेक्टस था, होमो सेपियंस थे, होमो सेपियन सेपियन थे, मतलब मिजोलिथिक वगैरह ऐसे ऐसे सब। फिर उसके बाद मैं टूल्स लिखती थी कि कौन से टूल्स यूज होते हैं, फ्लेक टूल्स और हाँ टाइप, हाँ चॉपिंग टूल्स ये सब। उसके बाद मैं टूल टेक्नोलॉजी लिखती थी, हाँ परकशन मेथड, डायरेक्ट हैमर, मतलब वो सब जो थे टूल टेक्नोलॉजीज वो लिखती थी मैं। फिर उसके बाद मैं सोसाइटी कैसी है वो लिखती थी, कि मतलब जबरदस्ती के थोड़े से अलग अलग करने, और सोसाइटी से अलग मैंने कल्चर भी कर दिया था। तो सोसाइटी में मैं बैंड सोसाइटी, ट्राइब ग्रुप्स, ये हाँ हाँ वैसे टाइप का। और फिर कल्चर में अलग लिखती थी कि कोई मतलब इनके वर्शिप, तब तो वर्शिप ऑफ गॉडेस वर्डेस नहीं था, पर ऐसा कुछ भी कल्चर में हाँ एविडेंस मिला है, या कुछ टूल्स कैसे थे। फिर मैं ऑक्यूपेशन डालती थी कि हंटर गैदरर थे, कि सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगे जैसे जैसे ऑक्यूपेशन बढ़ने लगा। तो ऐसे करके मेरे इतने सारे सब हेडिंग्स हो जाते थे, और वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखता था। मतलब आप ऐसे ही लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि ये टाइम फ्रेम था, ये था, पर वो ढूंढने वाले को भी, मतलब एग्जामिनर जब आप करेक्ट करोगे पैसेजेस या इस फॉर्म में रहेगा तो उसको डिफिकल्ट जाएगा, पर ऐसे सब हेडिंग में इजी भी जाता है करेक्शन में, और उतना ही डेटा भी लिखा है। और डायग्राम्स मतलब स्टोन टूल्स वगैरह के बनाती थी, मेरा थोड़ा डायग्राम वगैरह अच्छा था। और फिर साइट्स वगैरह जो थे, जैसे साइट्स का था, तो ये मैंने एक आर्कियोलॉजी की अलग बुक बनाई थी, लोअर मिडल, मतलब पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक, न्यूओलिथिक, ये सब, और पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइन। और वो मैंने टेबल पे रख दी थी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जैसे मेरा 15 दिन में बन गया था आर्कियोलॉजी का। और मैं ट्राई करती थी कि मैं ये, और उसके साइट्स भी मार्क किए थे कि इंडिया में क्या साइट्स है, वर्ल्ड में क्या साइट्स है, और कौन से थिंकर्स ने, सॉरी कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने वो साइट्स एक्सकेवेट किए हैं, ये सब, मतलब वही फुल आंसर वैसे टाइप से रेडी करके। और साइट्स के भी थोड़ा निमोनिक्स बना के रखती थी। फिर अपने वॉल पे या कबर्ड पे कहीं वो बना के रखूंगी कि हाँ मैं रोज देखती रहूं उसको, तो मुझे पता रहे कि अच्छा ये साइट्स है। She would revise it also. हाँ रिवाइज रेगुलर करती थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे अब इस साल थोड़ा एज लेना है, और मुझे इतना मार्क्स बढ़ाने थे एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसके मतलब वो डिफिकल्ट पार्ट है, पर मुझे लगा कि वो थोड़ा अवॉर्डिंग हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा एफर्ट्स उसमें दिया था।
आपने जैसे बताया कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे और लिखते थे, तो जैसे हम घर पे लिखते हैं मेंस के हाँ नहीं ऑप्शनल के ना ऑप्शनल के हाँ हाँ तो वो जैसे हम घर पे लिखते हैं तो हम सही तरीके से लिख लेते हैं, मतलब लगता है कि सवाल है जब जैसे क्लास में सर हमें क्वेश्चन देते हैं उस टाइम हमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं, तो वो कैसे आप और मैम सेकंड क्वेश्चन इसी में कि मैम जैसे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन हाँ, हाँ। होती है तो सर बोलते हैं हाँ आंसर तो लिखता नहीं है यार बहुत सवाल पूछ रहा है हम याद नहीं कर पाते एग्जैक्ट डेफिनेशन पर प्रैक्टिस में हम लिख देते हैं। हाँ वो हो जाएगा जैसे रिकॉल कर पाए मतलब करना ही पड़ेगा नहीं तो बाहर हो जाओगे देखो, जितनी बार पढ़ोगे हाँ इंटरनलाइज को नहीं वही फर्स्ट टाइम पढ़ते तो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है अरे क्या ये कैसे याद करेंगे हाँ 10 बार रिपीट करोगे तो क्या चीज याद नहीं हाँ और मतलब जैसे सर ही बताएंगे कि मतलब मेरा ऐसा अप्रोच था पहले कि मैं कोई भी थिंकर्स गूगल सर्च कर लूँ या अब एआई से तो सब पूरे आंसर्स रेडीमेड मिल जाते हैं, चैट जीपीटी हो गया या कहीं से भी, तो उसमें क्या हो जाता है वो बहुत अलग अलग थिंकर्स दे देते हैं और हम इनोवेशन के चक्कर में और अलग दिखने के चक्कर में यूनिकनेस का बहुत हाँ कीड़ा है लोगों हाँ कि मेरा यूनिक होना चाहिए। तो मुझे सर ने ही ये अप्रोच बताया था और ये मतलब मैंने थ्रू आउट द पेपर यूज किया था कि हर स्पेसिफिक टॉपिक का या हर स्पेसिफिक कोई एरिया जैसे कल्चर रिलीजन इन सब का स्पेसिफिक थिंकर है जिसने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है। जैसे कल्चर का हो गया ईबी टाइलर हो गया, तो इन्होंने बहुत काम किया है, तो इनका नाम आना चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब टिप थी जो मतलब मुझे बहुत फायदा किया इससे कि हम इनोवेशन के चक्कर में मतलब लिखो आप एक दो नए थिंकर्स पर पहले इम्पोर्टेंट अप्लाई करने की इनोवेशन करो हाँ rather than searching for new पहले जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स है जो प्रेजेंट है उनको लिखो पहले। और मतलब आंसर राइटिंग का जैसे टाइम फ्रेम में नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने तो पहले मेरे भी जो आंसर्स लिखती थी, मैं टेस्ट लिखती थी, उसमें मुझे 4 साढ़े 4 घंटा लगता था। और फिर मैंने मतलब और मैं क्या करती थी प्रीलिम्स मेंस के बीच में मैं ट्राई करती थी कि मैं 3 घंटा लिखते रहूं, मतलब नॉट नेसेसरी मैं आंसर्स लिखूं, मैं नोट्स बनाते रहूं, मैं जीएस का कुछ लिखते रहूं, मतलब नोट्स भी बना मतलब जो मेंस के मुझे शॉर्ट नोट्स है वो बनाते रहूं। सोशल मीडिया जनरेशन क्लास में नोट जीरो आदमी मतलब जितना आप हैंड रिटन करोगे प्रीलिम्स मेंस में वो फायदा होता है। तो जैसे प्रीलिम्स मेंस में थोड़ा लिखते रहो और 7-7 मिनट में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करो। वो प्रीलिम्स मेंस के बीच में किया तो भी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि 7 मिनट में आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास कंटेंट रेडी हो। जब कंटेंट रेडी ना हो तो वही हम 1 घंटे में एक ही आंसर लिखते हैं। तो मतलब टाइम कम करने का एक ये भी है कि मल्टीपल रिविजन्स और नोट्स रिवाइज हो जाए और डेटा हो, सब पता हो तो टाइम कम लगेगा, कुछ पता नहीं हो तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। प्रेडिक्टेबल थीम होती है एग्जाम में हाँ। ये आती है बात पर वो अगर आपका रेडी नहीं है कल को क्वेश्चन आ रहा है सेक्युलरिज्म अगर आपका तैयार नहीं है इट इज योर लॉस यू इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग दैट आंसर और रेडीमेड होना चाहिए आपका वेस्टर्न और इंडियन मॉडल याद किया जाके एज इट इज लिख दिया। तो जो प्रेडिक्टेबल पार्ट है वो आपका अगर 100% तैयार है तो बाकी जो रैंडम क्वेश्चन आएंगे थोड़े से डिफरेंट होंगे व्हिच विल नॉट बी वेरी प्रेडिक्टेबल उनमें यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट टाइम व्हाइल राइटिंग द आंसर। राइट। जैसे जीएस में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे सर ने बोला कि पता ही है इनसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आप एक छोटे से नोट्स बना लो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के कि हाँ सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मतलब जीएस 3 में ही इकोनॉमिक्स का पार्ट जो एग्रीकल्चर है वो मोर ओवर स्टैटिक ही रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पूछेंगे, एमएसपी का कुछ आ जाएगा, उसके प्रोज कॉन्स बेनिफिट्स ये सब कौन से कमिटीज है ये वगैरह आप प्री रेडी रख सकते हो, क्योंकि ये प्री रेडी नहीं रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है 7 मिनट्स में आंसर लिखना 10 मार्क का। तो नोट्स रेडी रहने चाहिए और मतलब रिवर्स प्लानिंग करो कोई भी सब्जेक्ट की कि मेरे नोट्स इतने छोटे होने चाहिए मेंस के कि मैं वो 2 घंटे के ब्रेक में रिवाइज कर पाऊँ, या आज ऐसे हुआ तो कल GS1 GS2 है तो मेरे ऐसे के पेपर देने के बाद आके GS1 GS2 के या GS1 का रिवाइज हो जाए, ब्रेक में मेरा GS2 का रिवाइज हो जाए, तो मेरे इतने नोट्स शॉर्ट चाहिए। और वो तब होगा जब आप मल्टीपल रीडिंग्स करोगे, रिविजन्स करोगे, और उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है नहीं पहले दिन से लास्ट में हाँ कि अब अगर तब आपने जो सब कुछ नॉलेज गैदर की उसको हाँ कंसोलिडेट किया हाँ और जो पहले दिन से नहीं बनते short पहले दिन से नहीं, मतलब पहले दिन से मत बनाना। हाँ मतलब जब प्रीलिम्स मेंस का आप पढ़ लो और जैसे एथिक्स फॉर एग्जांपल आप बेसिक नोट्स आपके पढ़ लो, पर आपको एग्जाम के पहले क्या एकदम याद आना चाहिए कि
कोई कलेक्टर का नाम याद रहना चाहिए जो उन्होंने अच्छा काम किया, तो वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, या फिर कोई कोट याद रहना चाहिए, वो आपके शॉर्ट नोट्स में लिख लो, कोई एग्जाम्पल्स जो यूनिक एग्जाम्पल्स आप लिखना है वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, मेंशन कर लो। तो ऐसी चीजें सब होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ मेंस के, तो भी तो ये मतलब आंसर के टाइम कम करेगा ये सब चीजें। एनीवन? हाँ, थोड़ा पर्सनल हाँ जब आप जब आप फर्स्ट टाइम दी होगी, पढ़ रहे होंगे हाँ तो मतलब क्या लगता था हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट? मतलब जब सब यूपीएससी प्रिपरेशन चालू करते हैं यही रहता है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूंगा, तो ये मेरा भी था ऑब्वियसली कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा, पर कुछ पता ही नहीं होता एग्जाम क्या होता है, डेप्थ ही नहीं पता होता है। सिर्फ पता होता है जब हम दूर से देख के आते हैं प्रीलिम्स और इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के वीडियो यूट्यूब पे दिखते हैं और सब प्रीलिम्स के ही कोचिंग बेचते हैं, सब प्रीलिम्स में ही बिकता है। मेंस तो एक रोड ब्लॉक जो इतना बड़ा, वो सबसे डिस्कशन ही नहीं होता है, सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज है ये, मतलब प्रिपरेशन की, जब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तो जनरली फोकस लोगों का होता है हमेशा प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स में ही होता है। हाँ मेंस तो जब देते हो तो आपको लगता है अच्छा मेंस तो बिल्कुल एग्जाम ही अलग है। हाँ और मेंस समझ में तब आता है जब एक बार मेंस लिख लो, राइट। तब तक मेंस समझ नहीं आता, लोगों को लगता है उन्हें समझ में आ गया, लेकिन एक बार जब आपने मेंस लिखा, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि ये चैलेंज अलग टाइप का है, क्योंकि आपको उन 5 दिन के अंदर सब कुछ लिख देना जो आपने इतना सब ग्रास्प किया। पहली बार नहीं कैसे सब पहली बार में तुम्हें ये बोल रहे हैं इनकी बात मानो कि mains पहली वाले पहले से- पहली बार में मतलब ऐसा है कि सीजनल मत पढ़ो, जैसे ये नहीं कि प्रीलिम्स आ रहा है तो बस मैं 3 महीने पहले पढ़ूंगा, अभी मैं टाइम पास करूंगा, ये सब मत करो, अभी से कंबाइंड चलो, ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन रखो। सिर्फ ये नहीं कि प्रीलिम्स के 3 महीने पहले प्रीलिम्स का पढ़ लिया, मेंस के 3 महीने, तो वो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ईयर राउंड पढ़ोगे तो आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहेगा, आप प्रीलिम्स को भी टाइम दोगे, मेंस को भी, आपके मेंस रेडी भी रहोगे आप, और मेंस रेडी ये नहीं है कि प्रीलिम्स एकदम ही अलग है मेंस से, कितने सारे सब्जेक्ट कॉमन है, तो इंटीग्रेटेड अगर चलोगे आप प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव जाने से पहले, तो वो आपको प्रीलिम्स में भी फायदा करेगा ही। और मेंस रेडी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो और 1 महीना कम कर दिया है मेंस का टाइम, तो 2 महीने में मेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस आपका थोड़ा रेडी हो। हाँ चीज़ जो नोट मेकिंग टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आपने बोला ना कि मल्टीपल रिवीजन्स के बाद लास्ट में नोट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एकदम ध्यान रखनी चाहिए नोट मेकिंग के टाइम पे। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बुक का ही सेम टू सेम नोट कर लिया, प्रीलिम्स या मेंस तो किसी का भी नोट्स भी उनका दोनों का अप्रोच अलग रहेगा। centric बनाना है हमेशा। हाँ एंड मैम प्रीलिम्स में इज इट रेलेवेंट टू मेकिंग नोट्स, मतलब ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए prelims नहीं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं। मैंने अपना अप्रोच बताया कि मुझे ये नहीं जमता था इसलिए मैंने किया, नॉट नेसेसरी कि आपको लगेगा ये, मैंने ये बताया है आपको कि मैंने क्या किया। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते हैं वो क्लियर करते हैं, मैक्सिमम लोग बिना नोट्स बनाए भी क्लियर करते हैं, तो वो एक चैलेंज नहीं है। और प्रीलिम्स मेंस के नोट मेकिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेंस के नोट्स मेकिंग में बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करना है, जो मेंस का सिलेबस है वो एक एक कीवर्ड, जैसे सपोजिटली एग्रीकल्चर में लिखा है एमएसपी, तो एमएसपी के आगे भी उन्होंने लिखा होगा 2-3 वर्ड्स की बेनिफिट्स ये वो, तो बराबर वो टॉपिक्स लिखो। पीडीएस सिस्टम के आगे लिखा होगा रिवैम्पिंग ऑफ पीडीएस सिस्टम, तो वो आप लिखो, वही टर्म्स यूज करो सिलेबस के। तो मेंस में सिलेबस बहुत ज्यादा गाइड करता है नोट मेकिंग में, एक एक कीवर्ड उठाओ, सोसाइटी में बहुत सारे, सोसाइटी का बहुत सिलेबस देख के करो, हाँ पॉलिटी सिलेबस करके, तो मेंस का नोट मेकिंग फुल सिलेबस के इन लाइन होना चाहिए। प्रीलिम्स का नोट मेकिंग पीवाईक्यू और मतलब बेसिक जो भी नोट्स आप रेफर करें उसके इसमें होना चाहिए, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है दोनों के अप्रोच में। स्टडी स्लम्स कैसे लेके इनवाइट करते हैं ना कि इनमें सब्जेक्ट 18 घंटे मैम सब्जेक्ट वाइज से एक पढ़ी। अच्छा हाँ हाँ, तो जैसे मैंने एक दिन में 2 भी ट्राई किया है, पर वो जो है कंप्लीट करने में 15 दिन लग जाते थे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि मैं इतने दिनों से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने वो चेंज करके मैंने एक ही सब्जेक्ट ले लिया था कि मैं हिस्ट्री लूंगी तो कंप्लीट करूंगी। और मैं मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में छोटे सब्जेक्ट लेती थी कि जल्दी कंप्लीट हो, तो थोड़ा डोपामिन रश आए कि दूसरा सब्जेक्ट उठाए और फट फट से करे। तो मतलब ये था कि कंप्लीशन का जो सेटिस्फेक्शन होता है, अगर 2 सब्जेक्ट करते हैं ना तो वो लेंदी रहता है, तो हाँ तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। पर कोई कोई मतलब जैसे आपको सूट करेगा कैसे, क्योंकि एक सब्जेक्ट से बोर्डम भी आता है,
तो उसका मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ये हिस्ट्री करोगे दिन भर हिस्ट्री तो बोर्डम आता है, तो आपको लगेगा कि कुछ करंट मिले, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो न्यूज़पेपर कर सकते हो उसके साथ। और अगर आपको 2 सब्जेक्ट करने ही है तो आप कोई मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट कर लो, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मतलब मैं इसलिए एक सब्जेक्ट करती थी कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाती है। अगर एक ही सब्जेक्ट को 20 दिन लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है मैं कितने दिन से पढ़ रही हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं। शुरू में 20 दिन लगेंगे, हाँ। मतलब शुरू में 1 मंथ भी लग सकता है। शुरू में लगेगा, मतलब अभी थोड़ा-सा सर वो आ जाता है कि एक्चुअली शुरू अपन लोग वो अप्रोच बताते हैं जो हाँ, लास्ट वाली रहती है। शुरू में लगेगा। 5 दिन में तो कंप्लीट नहीं, नहीं वैसा नहीं होगा। in this time, when you are doing repeatedly the revisions, Hmm. at that time the time will shrink automatically, right? Hmm. But एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको पूरा कंप्लीट करो, आपको फील आएगा अच्छा कंप्लीट हो गया। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड वन थिंग दैट आई विल आस्क यू ऑन देयर बिहाफ, इनको पता नहीं वो सवाल, वो सवाल ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ स्टडी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, सबको लगता है कि सीधा कंज्यूम करने कुछ हमको दे दे कोई कंज्यूम डायरेक्टली, और नहीं कि हमको एक वीडियो में दिखा दे, हमको एक क्लास के अंदर सिखा दे। हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ स्टडी फॉर एनी एस्पिरेंट और स्पेशली द फर्स्ट एस्पिरेंट्स? यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा था कि बस क्लास नोट्स कर लो, टॉपर्स बताते थे क्लास नोट कर लो, ये बुक कर लो, हो जाएगा। नहीं होता है। सेल्फ स्टडी या खुद के एफर्ट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवरी सब्जेक्ट में। इवन जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि रेडीमेड आपको सब सर्व मिलेगा। जैसे मैंने बोला था इंडिया पाकिस्तान का, तो रेडीमेड सर्विंग नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अच्छा इंडिया पाकिस्तान में और क्या आ सकता है, बॉर्डर इश्यूज आ सकते हैं, कौन से सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है, कौन सी बॉर्डर्स है, कौन सी पीसफुल है, कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर्स है। इंडस आया तो इंडस का ओरिजिन क्या है, कौन से नेशनल पार्क है वहां पे, कौन सा फ्लोरा फौना मिलता है। मतलब ये सब एफर्ट सेल्फ स्टडी से आएंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे तमिलनाडु का मैंने एग्जांपल दिया था, गवर्नर और गवर्नमेंट का, तो गवर्नर का आ गया तो आपको सेल्फ स्टडी में ही मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सोचना पड़ेगा कि अच्छा गवर्नर का आर्टिकल क्या है, अच्छा गवर्नर के लिए ये पुंजी कमीशन ने क्या कहा था, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था, मेंस मतलब ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड हो जाता है। बट ये आपको चीजें सर्च करनी पड़ेगी, आपको वापस बेसिक नोट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे कोई इश्यू आ गया सब, जैसे अभी मैं गवर्नर का एग्जांपल लूंगी तो आप लक्ष्मीकांत में गवर्नर का चैप्टर खोल लो, थोड़ा सा उसमें वापस बैक टू बेसिक्स चले जाओ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंसाइट। हाँ, तो ये दिस इज सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं कि आपको न्यूज़पेपर में सब मिल जाएगा या आपको कोई कोचिंग में भी सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अभी कोई कोचिंग इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब कैंसिल कर दी इंडिया ने, तो वो यही देंगे कि क्या स्टेजेस थी ये वो। बट उसका और आप इंडस रिवर के बारे में सोचो कि इंडस रिवर का क्या है, और कौन से अभी सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी क्यों, और दूसरी कौन सी ट्रीटीज है इंडिया की, कौन से रिवर्स फ्लो होती है, क्रॉस बॉर्डर रिवर्स क्या है, हाँ, और कौन से क्रॉस बॉर्डर रिवर्स है, और कौन से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनमें कुछ ट्रीटीज है, क्या होता है। मतलब ऐसा छोटा छोटा ये, इससे थोड़ा सा अ, अच्छी होलिस्टिक प्रिपरेशन जो बोलते हैं वो होगी। मतलब सुपरफिशियल नहीं लगेगा आपको कि कोई भी टॉपिक उठा लिया। और ये इतना अंडरस्टैंडिंग जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है कि अभी एक क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन फिर उसके 4 ऑप्शन, उसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें ये जो आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो एलिमिनेशन में काम आते हैं। जो बोलते हैं ना ये ट्रिक्स विक्स लगाओ, तो वो ऐसे ही डेवलप होते हैं कि आप सेल्फ स्टडी में इतने एफर्ट्स डालते हो कि तब आप एलिमिनेट कर पाते हो। लॉजिक से हो गया, हाँ, डेवलप होगा अंडरस्टैंडिंग। हाँ। जैसे मतलब आप लॉजिक भी तब डेवलप करोगे जब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की कौन से इसके साथ ट्रीटीज है, तो आप ये सोचोगे ये कंट्री के साथ तो कोई हमारे क्रॉस बॉर्डर रिवर नहीं है। तो जब वो आपने ये थोड़ा बेसिक अपनी सेल्फ स्टडी की होगी तभी आप ये सब लॉजिक लगा पाओगे और ये सब मतलब एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा पाओगे, और वो तभी काम करती है। मतलब जो 50-50 चांसेस जो है वो 80% तभी होंगे जब आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है। मैं जो सीक्वेंस मान लीजिए सिलेबस फर्स्ट फिलहाल प्रॉब्लम हो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस को पढ़ने में मतलब और मतलब कोई सब्जेक्ट है अच्छा सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। हम्म प्रॉब्लम ये है, जब अगला शुरू करते हैं मान लीजिए अगला वीक और पिछला पूरा खत्म हो जाता है, कुछ रह नहीं जाता। राइट। फर्स्ट रीडिंग जो है हमेशा बहुत मजा आता है जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं कि नई चीजें पता चल रही है, नई जानने को मिल रहा है कि हाँ वाओ पॉलिटिक्स, क्यूरियोसिटी रहती है, तो बहुत मजे आते हैं फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग से इतना बोरिंग हो जाता है वो काम कि ये रिविजन यही। छठे टर्न में जब हाँ 25 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, हाँ, जब लक्ष्मीकांत वापस खोलते थे ऐसा लगता है कि क्या है ये, मतलब बोरिंग हो जाता है। पर यही बोरिंग को करना है कि जब 1 महीने बाद भूल जाओगे
तो आपको वही मंथ में वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। जो बोरिंग काम है वो करना है। जो मतलब आपको भी करंट अफेयर्स, बच्चे ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नया है। आज कुछ नया हुआ, कल कुछ नया, तो ये मतलब साइकोलॉजिकली मजा आता है कि वाह। और ये आपको फीलिंग भी देता है कि अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। बट क्या फायदा जब मतलब मार्क्स लाने के वक्त। तो उसके लिए वही बोरिंग स्टफ करना है, रिवीजन करनी है कि इस सब्जेक्ट पढ़ा, भूल जाते हैं तो एक बार रिवाइज करो, फिर दूसरी बार रिवाइज करो। जब सेकंड रिवीजन रहेगी, 1 महीने में पढ़ा तो शायद उसमें 25 दिन लगेंगे सेकंड रिवीजन में, फिर थर्ड रिवीजन में 20 दिन लगेंगे, फिर फोर्थ रिवीजन में 15 दिन लगेंगे। ऐसा करते करते आप वो सब्जेक्ट को पर 1 वीक में रिवाइज कर पाओगे। प्रॉब्लम और है, जैसे हम्म 1 मंथ होने के लगा एक सब्जेक्ट पढ़ने में, फर्स्ट डे पढ़ा हो ना या सेकंड डे, हम्म वो मंथ के लास्ट तक जाता है तो वही वो भूल जाता है, हाँ, ये होता है। और क्योंकि अपना अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, मतलब इतना, और नॉलेज इतना वास्ट है तो ये ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैं क्या करती थी, जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स कर लिए, जैसे मुझे पता है लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट या मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाँ सेंटर स्टेट हो गया, ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी पढ़ लिए है, जैसे मैंने आज, पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में तो नहीं हो पाता, मतलब मेरा तो नहीं हो पाता था, तो 2-3 दिन मुझे लग जाते थे। तो फिर उसके बाद अगर मैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये 3 चैप्टर्स कर रही हूँ, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं पार्लियामेंट वो खत्म होने के बाद, जैसे 3 दिन में किया और 3 दिन में मैंने ये किया, तो फिर 7th डे मैं वापस पार्लियामेंट को 1 आवर में रिवाइज करूंगी, कि बस देखूंगी मैंने क्या हाईलाइट किया, पेज पलटा के, क्विक रिविजन। और उसी के साथ मैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये भी करूंगी। मतलब मुझे सिर्फ पेज पलटाना है, अच्छा ये मोशंस है, ये मैंने जो हाईलाइट करके रखा है, ऐसे टर्न करते रहना है। तो मतलब थोड़ा सा वो, क्योंकि ये भूलेंगे ही, वापस प्रीलिम्स के पहले वापस करना है यही प्रोसेस। तो ये मतलब नॉर्मल बात है कि भूल ही जाते हैं। और प्रीलिम्स के वक्त 5 मंथ्स आपको ये रिपीटेडली करते रहना है, तभी आप प्रीलिम्स तक, आपका पीक प्रीलिम्स तक आना चाहिए, तो तभी वो याद आएगा। दो तरह के रिविजन होते हैं, एक होता है सीरियस, जब आप सेकंड टाइम भी वापस से उतनी ही इंटेंसिटी फोर्स से एक क्या होता है जब आपने एक बार इसको कंप्लीट कर लिया, एंड व्हेन यू आर डूइंग लेट्स से अनदर सब्जेक्ट, तो मे बी यू कैन हैव अ कैजुअल रिवीजन, जिससे कि आपको आइडिया है कि अच्छा ये मेन बात है। जब सेकंड रिवीजन सीरियस करोगे तो आपको काफी चीजें ऑलरेडी आपको रिकॉल हो जाएगी, अगर आपने सिर्फ पेज भी पढ़ लिया। अपन हम क्या करते हैं, पेज नहीं पढ़, किताब को जो साइड में तो 8 महीने बाद उठाएंगे, तो लगेगा ये किताब मैंने पढ़ी शी, मैं जानता हूँ इसको, ये जानता हूँ। और हाँ, और एक बात ये करते थे कि जैसे खाना वगैरह खाते तो मतलब फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके, तो आप डिस्कस कर सकते हो, जो आपने पढ़ा उनको बता दो कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ा, फंडामेंटल राइट में ये इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी में ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जरूरी है सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आपको अपना रिविजन करना है तो आप जबरदस्ती बता दो। चाय पी रहे हो तो अच्छा ये रामसर साइट न्यू ऐड हुई है, इसमें ये एनिमल मिला है, तो ये मतलब पैसिव रिकॉलिंग हो जाती है, एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है। तो इंटरेस्टेड कि नहीं, मतलब मैं घर वालों को भी फोन करके यही चीजें बताते रहती थी। और तो आप कितना पेशेंस मतलब कि सुनो क्या, मतलब क्या करना है, सुनो तो ऐसे ही कोई किसी को भी बोर कर सकते हो, बताते रहो खुद का फायदा फायदा देखो, उसका भी फायदा ही है, उस आगे वाले को समझ नहीं आ रहा, अगर वो भी एस्पिरेंट है तो कल जाके वो भी अच्छा ये बता रहा है, अब मैं भी 2 चीजें पढ़ के इसको बताऊंगा, तो आपको भी फायदा हो जाएगा कि ये भी मुझे 2 एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है। Actually, she came to me for guidance from one of the previous students हम्म who had already qualified with Shreya Singh in I think 2022, 22, हाँ 22-26 में। तो वो भी निकल गई, ये भी पास हो गई। हाँ, शी वॉज माई रूममेट, तो हम भी ऐसे ही करते थे, जैसे क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा है तो फिर हम आके रूम पे डिस्कस कर लेंगे, अच्छा ज्योग्राफी का ये पूछा है, टेस्ट है, तो हम देख लेते थे, तो थोड़ा फिर मदद हो जाती है, क्योंकि क्या है कि कोई मुझे पूछ ले और मेरा रॉन्ग हो जाए तो मुझे वो चीज बहुत याद रह जाती है कि अरे यार मेरा तो ये गलत हो गया था, तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी, फिर एग्जाम में अरे ये मेरा गलत हुआ था, तो मतलब और एग्जाम में आ गया तो फिर अच्छा खुशी लगती है कि उन लोगों के कहते रेंज टारगेट लेके आ रही 3 गलत सवाल पूछ रहे हैं। उन लोगों को अवॉइड कर उन लोगों से बात करना बंद कर दो। वेरी गुड। बी सिलेक्टिव, यहाँ पे आप अपना निकालने आए हो, तो फ्रेंड्स भी ऐसे चाहिए कि जो मोटिवेट करे आगे बढ़े, अगर लग रहा है तो कट ऑफ कर दो, क्यों खुद का मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पीस खराब करना है ये। पेरेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यस, किया, इज लाइक वेरी सपोर्ट इन पूरे प्रोसेस। जब एग्जाम के टाइम में वो दिया है, ये आ गया प्रीलिम्स के बीच में, जो मेंस के बीच में जो हाँ लगी थी, तो उन्होंने उनको तक
यस वरना पास नहीं होती। मतलब प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले भी जैसे ये सब नेशनल पार्क वगैरह तो दिन भर हम पढ़ाई करके रात तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं 10 बजे तक 10:30 तो मैंने उनको पीडीएफ भेज के रखती थी नेशनल पार्क वगैरह के तो फोन करके रात में फिर मम्मी सुनाती थी या मम्मी पापा नेशनल पार्क सुना देंगे कि ये है कि मैं बस सुनती रहूं कि ओके फिर क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा ये बताओ कौन से स्टेट में है उनकी मम्मी ने सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो क्या रिजल्ट है कि उन्होंने बताया हाँ यू कैन शेयर हाँ व्हेन यू पास द एग्जाम। मतलब जैसे मैं और मेरी बहन थे हम लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे तो मम्मी खाना बना रही थी 2 बजे का टाइम था दोपहर का तो सब खाने का ही डिस्कशन चालू था कि क्या खाना वगैरह ऐसे सब तो मम्मी किचन से जोर से चिल्लाई मतलब मराठी मैं महाराष्ट्र से तो मराठी में झाला 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 में तो हो गया तो मेरे मुझे और मेरे बहन को लगा ऐसा क्या खाने में बना दिया है कि इतना मतलब खुशी से हो गया क्या झाला तो फिर मम्मी आई रोते रोते कि मतलब उनको नोटिफिकेशन आ गया होगा फिर वो बैठी थोड़ा खाना बना के डाइनिंग पे तो उन्होंने फोन देखा ऐसे तो रिजल्ट आ गया मैं टेलीग्राम थोड़ा अवॉइड कर रही थी क्योंकि बहुत प्रेशर आ जाता है बहुत स्ट्रेस होता है तो फिर बोले कि हो गया मैंने बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता फेक पीडीएफ आते हैं मैं बोली रुक जाओ मैं हाँ मतलब कुछ दिन पहले ही आई थी रिचुअल भी एक बार फेक हाँ। हो जाए फिर पक्का रिजल्ट आ जाए। मतलब सर कुछ दिन पहले ही फेक पीडीएफ आई थी मेरे फ्रेंड ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था मेरा 381 रैंक था फेक पीडीएफ में अरे वाह तो ऐसे मैं बोली नहीं नहीं फेक पीडीएफ आती रहती है मार्केट में रुक जाओ तो मैं देखने लगी फिर मैंने देखी अच्छा वेरीफाइड पीडीएफ है वो फिर रोल नंबर डाल के देखी तो तब तक फोन बजना चालू हो गया मैं बोली ठीक है आ गया चलो फिर कौन फर्स्ट सेकंड मुझे कुछ पता नहीं था बस अपना हो गया खुश वैसे टाइप से ये मुझे बात दो हाँ यस एक और क्वेश्चन है मैम क्योंकि आपकी जर्नी इतनी ज्यादा लंबी रही है जनरली लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं सोचते हैं कि कुछ और देखते हैं क्योंकि राइट कुछ हाँ इसमें चला जाता है राइट तो माइंड में आता है सेल्फ डाउट की कुछ और कर लेते हैं Right. opportunity cost कभी हाँ 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 तो ऐसा कौन सा चीज था जो आपको स्टिक रखा थ्रू आउट द प्रिपरेशन उतना ही हाँ। motivation के साथ? पहले तो फर्स्ट थिंग जो मुझे स्टिक रखी कि मेरे मार्क्स जो थे वो कट ऑफ से बहुत दूर नहीं आते थे तो मुझे था कि ओके मैं कर सकती हूँ पहली चीज ये थी दूसरी ये थी कि जो बैकअप का मैंने सोचा था लास्ट अटेम्प्ट में मैंने कैट भी दी थी तो उसमें भी मतलब कोई एक आईएम मिल जाता वैसे टाइप से था मतलब जो प्रेशर आ ही जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टिक रखी कि वो इनर मोटिवेशन था कि मुझे करना है खुद को करना है मुझे मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब वीडियो आज देखूंगी कोई टॉपर का और फिर मैं 4 दिन पढ़ाई करूंगी मोटिवेशन देगी कि वो आईएएस ऑफिसर्स निकल के जा रहे हैं वैसे सब मतलब वो 3-4 दिन चलेगी पर वो मतलब इनर मोटिवेशन था कि मुझे करना है और मेरे घर वालों ने बोला था कि अगर तुझे करना है तो निकालना ही है मतलब निकालना है तो और खुद में भी था कि अंदर से कि आई वांट टू डू इट तो वो इनर मोटिवेशन ही इतने टाइम तक चला है ठीक है एनीथिंग एल्स Same, literally, for a हाँ, isolated रहते आपके पास हाँ। also but I think for people guys bitch मतलब थोड़ा सा इंस्टाग्राम वगैरह से कट ऑफ कर दिया था क्योंकि वो होता है कि फ्रेंड्स जो साथ के थे अभी तक के अच्छे अच्छे अर्न कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं तो मैं डीएक्टिवेट कर लेती थी प्रीलिम्स के पहले या मेंस के वक्त कि थोड़ा सा ये सब माइंड में ना आए और जैसे एग्जाम 1 साल दूर है तो 8 आवर्स ऑन एन एवरेज मतलब 15 डेज में हाफ डे का ब्रेक ले लिया वैसे टाइप से एग्जाम पास है प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तो वो 10 आवर्स हो गया फिर 1 महीने पहले 12 आवर्स हो गया तो वो वैसे प्रीलिम्स जैसे आता है तो सबका ही पीक बढ़ जाता है बस वो खाते पीते होते हैं। सब हाँ पढ़ते ही रहते हैं और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो बहुत हेक्टिक हो जाता है तो वो हो ही जाता था 10 घंटा 8-10 घंटा और मेंस के एक महीने पहले और ज्यादा बढ़ जाता है 12 आवर्स अराउंड हो जाता था तो मतलब वो कि एग्जाम कितने दूर है उसके बेसिस पे पर ऑन एन एवरेज भी मेरा 8 आवर्स रहता ही था और मैं ट्राई करती थी कि एग्जाम दूर हो पास हो मुझे लाइब्रेरी जाना है मुझे बैठना है कभी मेरा मन नहीं भी होता है तो भी मैं जाके बैठती थी वहां पे कुछ भी मैं कई वीडियोस देख लूँ कुछ कर लूँ पर मैं लाइब्रेरी में बैठती थी कि एटलीस्ट मैं 1 पेज पढ़ लूँ आज मेरा दिन अच्छा नहीं है मैं 1 पेज पढ़ लूँ पर ऐसा था कि डेली करना ही है 1 पेज 2 पेज फिर वो होता है थोड़ा सा मोमेंटम बनता है What I feel is कि एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए आपको फिर सुबह जैसे 9 ऑफिस आते हैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं आप 6 बजे निकलते हैं
हाँ, ये आपका फिक्स होना चाहिए। हाँ, टाइम चेंज नहीं कि राइट, मुझे रोज सुबह नहा के 9 बजे लाइब्रेरी पहुंचना है, राइट, शाम को 6-7 बजे आना। तो अगर वो टाइम फिक्स हो गया, उसमें हो सकता है बैड डेज पे आप कुछ कम करोगे लेकिन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ चॉइस बेस्ड रेजिम दैट यू होता है। अगर आप चॉइस बेस्ड में मन नहीं करा, मन तो नहीं करेगा, हाँ, एग्जाम ही ऐसा है। हाँ, इतना ज्यादा पढ़ना कि मन करने के मतलब भरोसे रह गए तो मन हाँ, तो करेगा 10 साल बाद पढ़ने हाँ। जब वास्तविकता आएगी सच्चाई जीवन की साथ में। और सर डिस्ट्रैक्शंस अभी बहुत बढ़ गए मतलब फ़ोन वगैरह, तो मैंने प्रीलिम्स के पहले वो छोटा वाला ले लिया था फ़ोन, जो जो की वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस अगर मैं कुछ सर्च भी करने आती तो मुझे 2 एक्स्ट्रा रील दिख जाएगी, तो फिर मतलब खुद को ही फ्रस्ट्रेट होता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि फिर मैं एक तो फ़ोन फिर रूम में ही छोड़ के आती थी, लाइब्रेरी जाऊँगी या फिर लॉकर में रख देती थी या फिर छोटा फ़ोन कभी यूज़ कर लिया। तो मतलब ये था कि ये फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आज आपके लिए भी वही स्ट्रगल होगा कि मैं कैसे ये डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करूँ, कि एक रील देखने लग गए 1 घंटा, 2 घंटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को कम सबसे मतलब अवॉइड करो, कैसे कर सकते हो कम से कम? पहले तो पहले हुँ, आपने जॉब करी लगी हार्ड हुँ, जैसे आपके पास हुँ, हाँ, हाँ, राइट, हुँ, लगी कुछ जॉब क्योंकि कई बार डॉक्टर अंदर से नहीं था हाँ। आप एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन से था कि मुझे यूपीएससी प्रिपेयर करना है, और सबसे पहले ये था कि थोड़ा फैमिली सपोर्ट करने के लिए रेडी थी। अगर फैमिली सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होती और बोलते कि हम नहीं पैसे भेजेंगे या नहीं सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे जॉब करना ही पड़ता। पर क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट था कि ओके तू कर, मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं है हमें, कि वी कैन प्रोवाइड यू, मतलब थोड़ा-सा उतना प्रिविलेज था, इसीलिए मैं सस्टेन कर पाई, नहीं तो सब नहीं कर पाते, मतलब पता है। हाँ, मतलब खुद का मैंने जैसे कहा कि मुझे यही करना था, मेरा इनर मोटिवेशन था। तो वो मुझे डाउट नहीं था कि मुझे करना है, और जब आप एफर्ट्स दे रहे हो, मतलब मैं देखती थी दूसरों को कि सिर्फ़ प्रीलिम्स आए तो लाइब्रेरी में आते हैं, मैं तो साल-साल में पढ़ रही हूँ, मैं तो रेगुलर जाती थी और दूसरे सिर्फ़ प्रीलिम्स के पहले आते थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो इनसे बेटर हूँ, आज भी, और मैं कर सकती हूँ। तो अगर ऐसे मेरे कॉम्पिटिशन है तो मैं एक एज मेरा वैसे वैसे ही मिलता है कि मेरा प्रीलिम्स आज नहीं, मेरा कल भी निकला, तो मैं मेंस रेडी रहूँ कि मेरा मेंस निकल जाए उस अटेम्प्ट में। तो ये खुद में फिर कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि ओके आपको कंटिन्यू करना है या गिव अप करना है। फर्स्टली आई सेड इर्रेगुलर स्टडिंग, कि सैटरडे संडे ब्रेक लेंगे, क्यों ब्रेक चाहिए? यूपीएससी करना है तुमको, एक अटेम्प्ट में निकालना है, इतना वास्ट सिलेबस है, 15 डेज़ में ब्रेक ले लो, हाफ डे ब्रेक लो, ये नहीं कि फुल डे मूवी देख रहे ये सब। थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम करो, वो ज़ोन में रहना पड़ता है, मतलब प्रीलिम्स निकालना है या मेंस निकालना है, वो एक ज़ोन आ जाता है। 3 महीने पहले पूरा ज़ोन आ जाएगा आपका कि आपको मतलब करना ही है, दिन में दिमाग में सोते वक़्त वही चलेगा। नींद भी 6 बजे खुल जाएगी डर के मारे कि पढ़ना है, करना है। तो व्हाट वाज़ योर क्वेश्चन? to learn from mistakes. यस, यस। हाँ, सो दिस वाज़ व्हाट आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कि हाँ, ये मिस्टेक्स सब कर रहे हैं। पहली तो ये थी कि रेगुलर रहना है और करना है, गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, ये। दूसरी मिस्टेक जो था यही टेस्ट नहीं देना, कि जो मैंने भी की थी खुद ने भी, कि डरते हैं हम टेस्ट देने से, कम नंबर लेने से या खुद को क्रिटिकली एनालाइज करने से। तो ये एक मिस्टेक भी दूसरे भी करते, मैंने भी की, तो वो नहीं करना है। आप इसे पढ़ी जाता है लाइक 15 डेज अगर मैं रेगुलर कर लेता हूँ तो मुझे एग्जॉस्ट फील होता है। हाँ, राइट। पावर बॉडी हाँ, तो फिर ऐसा नहीं क्या मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 12-15 घंटे पढ़ो, तुम एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, ये बहुत लॉन्ग गेम है। मतलब वो ठीक है कि 1 महीने पहले प्रीलिम्स आ रहा है तो तब पढ़ोगे, तुम मतलब ये एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। मेंस देने के बाद ही वो 3 महीने के बाद 10 दिन का ब्रेक लगता है, इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इतना हेक्टिक प्रोसेस होता है पूरा। तो ऐसे ही सिमिलरली 8 टू 10 आवर्स, 8 आवर्स तो भी एवरेज, 8 आवर्स हो रहा है तो करो, 8 आवर्स तक जाओ। दिस थिंग टेक अ स्टैंड इन हुँ, मान लो कि एक बार हो गया कि आप आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं लगता तो ढंग से एंजॉय कर लो हाँ, ढंग से मूवी देख लो आज देन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो टुमारो आप सुबह उठ के चालू कर लो काम या 20 दिन बाद आपको लग रहा है कि नहीं 2 दिन का ब्रेक चाहिए you know yourself better when you start learning about yourself then you'll get to know कि अच्छा मुझे ब्रेक के बाद ये पढ़ाई है हुँ, कई ब्रेक लोगों को बिना ब्रेक के पढ़ाई हो जाती है फिर
Whatever works for you, you find it out on your own. सैचुरेशन एक पॉइंट आ जाता है अपना कि नहीं, फिर तुम कितना भी ट्राई करो तो 15 डेज के बाद हाफ डे ब्रेक ले लो। और यूपीएससी के मतलब प्रिपरेशन में मुझे ब्रेक का सबसे मेरा अच्छा डेफिनेशन ये था, मुझे एक्स्ट्रा सोने को मिल जाए, क्योंकि तो मतलब ब्रेक का दिन भी मैं था कि ज्यादा सोने को मिल जाए। तो दिस वाज माय ब्रेक। और मतलब सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का मूवी हो सकता है, किसी कोई फ्रेंड से मिलने चले जाए वो भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं और होता है कि थोड़े दिन बाद, पर ये नहीं कि आप 2 दिन ही 12 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन का ब्रेक ले लिया, ऐसे सब मत करना कि 2-3 दिन ही 10-12 घंटे पढ़ के अभी मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मुझे 3-4 दिन का ब्रेक चाहिए। ये वेस्ट हो जाएगी वो। तो कंसिस्टेंट रहो, एकदम खुद पे प्रेशर मत डालो कि मैं 15 घंटे का नहीं होगा। लॉन्ग जर्नी है, 1 साल आपको निकालना है, सस्टेन करना है पूरा प्रोसेस, डिसिप्लिन रहना है। तो थोड़ा-सा बॉडी भी साथ देनी चाहिए उस हिसाब से। मैम 8 आवर में आप कैसे मतलब पढ़ाई करते हो शेड्यूल से? जैसे स्टार्टिंग में आपने क्लास लिया, फिर 8 आवर उसके बाद पढ़ाई करते हो या फिर शेड्यूल में ऐड करके? Mostly she's talking about a later phase of the preparation. हाँ, मतलब When she was doing self-study. हाँ, हाँ। मतलब स्टार्टिंग में तो जैसे आपको क्लासेस कर रहे हो आप, तो मतलब कैसे डिवाइड करते टाइम को, वो पूछ रहे हैं ना? तो आप थोड़ा-सा टाइम मतलब 3 आवर्स आप क्लास नोट्स रिवाइज़ करने को दे सकते हैं। क्लास नोट्स रिवीजन मतलब ये नहीं सिर्फ़ जो क्लास में पढ़ाया है वो, थोड़ा-सा उस पे भी लक्ष्मीकांत देख लो, स्पेक्ट्रम देख लो, मतलब बेसिक नोट्स देख लो, एनसीईआरटीज़ कर लो, एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट। वो कर लो, वो देख लो और उसके बाद ये 3 घंटे का मतलब एक स्लॉट हो गया, उसके बाद आप थोड़ा 3 घंटे करंट अफेयर्स कर लो, फिर 3 घंटे ऑप्शनल कर लो, ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। हुँ। ऑप्शनल का? ऑप्शनल की मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि पहले एक बार मैंने क्लासेस कर ली थी, तो मेरे पास एक बेसिक नोट्स था, बेसिक मतलब ठीक है, समझ गया था कि ये सिलेबस है, पेपर 1 में ये है, पेपर 2 में ये है। फिर जैसे मैंने ये किया था कि मैं एक-एक यूनिट उठाऊँगी, जैसे मैं ऑप्शनल कर रही हूँ, तो जैसे मैंने सेकंड यूनिट उठाया, सेकंड यूनिट का 2.1 पार्ट उठा लिया, तो आज सपोज़ मैं 2.1 का पढ़ूँगी आज और कल में, तो फिर मैं उसके पीवाईक्यूज़ देखूँगी। फिर मैं टॉपर्स नोट्स देखूँगी, टॉपर्स कॉपीज़ देखूँगी कि टॉपर्स कॉपी में उन्होंने कैसे पीवाईक्यू को अप्रोच किया है। फिर टॉपर्स के नोट्स देखूँगी, फिर मैं अपने पीवाईक्यूज़ लिखूँगी। बहुत सारे मार्केट में बुक्स आते हैं, सिम्प्लीफाइड और हाँ, विवेक भास्मे की, अक्षर जैन की, तो उनमें भी दिए हैं। तो 1 यूनिट का मैंने स्टैटिक पढ़ लिया, फिर मैंने 2 दिन थोड़ा स्टैटिक कर लिया, फिर मैंने उसके टॉपर्स नोट्स देख लिए, क्या वैल्यू एडिशन मतलब मेरे नोट्स सफिशिएंट है क्या टॉपर्स के जैसे आंसर लिखने के लिए? क्या मैं वो नोट से स्टैटिक नोट से आंसर लिखूँगी, तो क्या वो इतना इक्विवेलेंट रहेगा कि वो टॉपर्स के आंसर के इतना इक्विवेलेंट है? अगर नहीं है, तो मुझे क्या वैल्यू एडिशन करनी है? मैं थोड़ा-सा देखूँगी, उनके नोट्स में देखूँगी, मैं अपने नोट्स में कुछ वैल्यू ऐड करके रख दूँगी। तो ऐसे एक-एक यूनिट का वैल्यू एडिशन और यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक और उसके प्रीवियस ईयर लिखना। तो ऐसा करके जैसे 1 यूनिट मेरा खत्म हो गया, फिर मैं दूसरा यूनिट लूँगी। तो ऐसा मेरा ऑप्शनल का ऐसा किया है मैंने। नहीं, नहीं, फर्स्ट रीडिंग में मैं आंसर लिखूँगी तो मेरा बहुत ज़्यादा बेकार आंसर रहेगा। अगर मैं फर्स्ट रीडिंग में ही आंसर लिख रही हूँ। एक मतलब पहले तो क्लासेस कर लिए, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग मैं डेवलप कर रही हूँ खुद से कि मैं देख के लिखती थी, मॉडल आंसर बनाती थी खुद का कि अच्छा मुझे 10 मार्कर है, तो मुझे इतने वर्ड्स में आना चाहिए। तो मैं इसमें क्या कैसे डिवाइड करूँ? मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा? मेरे बॉडी पार्ट में क्या होगा? मुझे कितने डायग्राम्स बनाने हैं? मुझे क्या वैल्यू ऐड करना है? मैं 2 थिंकर डालूँ या 3 थिंकर डालूँ? अच्छा ये टॉपर ने 3 थिंकर डाले हैं, तो मैं भी 3 थिंकर मैं डाल सकती हूँ। एटलीस्ट मैं मॉडल आंसर में लिख के रख सकती हूँ। फिर रेसिप्रोकेट होगा नहीं होगा पता नहीं, पर एटलीस्ट मेरा 40 आंसर्स लगता है टॉपिक आपको तुम कंप्लीट हो गया है। हाँ, प्रीवियस ईयर्स करना मतलब एंथ्रो में तो भी नेसेसरी है ही। मैम तो आपने लिख लिया था पीवाईक्यू सारे, हुँ, जिसमें आपको 180 मार्क्स मिले थे, हुँ। तो वो सारे आंसर मतलब आपने लर्न कर लिए थे? नहीं, लर्न तो होते नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग बेसिस ही होता है। जैसे यूनिट 9 हो गया, तो थोड़ा जेनेटिक्स का पार्ट रहता है या थोड़ा उसमें तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी उसमें रहता है। तो जितना मुझे समझ पाया और थोड़ा लर्न करना पड़ता है, जैसे थिंकर्स हो गए लर्न करना है।
जैसे बहुत सारी चीज़ें लोकेशंस हो गए एंथ्रो में लर्न करना है। तो ये हाँ, केस स्टडीज़ हो गई। तो ये सब फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स में जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई ना कि मैं लिख के रखती थी कि मुझे ये तो इन मतलब अप्लाई करना ही है पेपर में जाके। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके या मतलब जैसे मैंने आंसर भी लिखी थी तो मेरा वो उसका प्रोसेस था। मैंने कहीं से मतलब कॉपी डायरेक्ट कॉपी नहीं किया था। मैं 2-3 टॉपर्स के रेफर करके जिसके अच्छे मार्क्स आए थे तो उसके देख-देख के लिख के वैसे अप्लाई करती थी। फिर टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं जैसे सबके पास थी मेरी टेस्ट सीरीज़। तो जैसे वो 2, 3, 4, 5 ऐसे 3-4 यूनिट क्लब करके तो जैसे मेरे इतने सब ऐसा प्रोसेस हो गया, तो जो मैंने मॉडल आंसर्स बनाए वो एक बार मैं रिवाइज़ करके फिर मैं टेस्ट सीरीज़ लिखती थी कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि नहीं। अच्छा मैं क्या रिकॉल नहीं कर पा रही या मुझे ये अप्लाई करना है फिर और उसमें इम्प्रूव फीडबैक मैकेनिज़्म से ऐसा पूरा प्रोसेस है। हाँ, एक दिन में नहीं होगा। Like, मतलब be okay with giving a lot of time. हाँ, मतलब टाइम वाला की जो जल्दी वाला की मतलब एकदम से हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा. हाँ, Everybody has same doubts. Even people who have got selection, they have the same doubts. हाँ, Yesterday there was a topper Benjo Bijos, he had 303 marks in. हाँ, इम्पोर्टेंट। उसके बाद भी उसको तो लग रहा था कि सर मेरा आर्कियोलॉजी थोड़ा कमजोर रह गया. इस बार अगर पढ़ता तो आर्कियोलॉजी पढ़ता. तो ये किसी को नहीं पता होता है कि कितना इनफ है. हाँ, पढ़ते रहना ही इज द ओनली. हाँ, ठीक है ना. और दूसरा खुद करके ही मोक्ष प्राप्त होगा. ये नहीं दिखता। कि मोक्ष के बारे में सुनने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा. कि मोक्ष ऐसे प्राप्त हो जाता है. राइट. तो देन यू विल हैव टू फिगर आउट और प्लस फोकस ऑन प्रोसेस की रोज लेवल पे जो 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 टॉपिक वाइज आपको एक मिनिमम मॉड्यूल वाइज हाउ यू हैव टू फोकस हाउ यू हैव टू keep yourself motivated. That is the more bigger part of it, right? So I think that should be. And what is what's that say? ऐसे सो ऐसे मैंने क्लासेस जैसे की थी ऐसे के तो वहाँ पे मतलब सर ने बताया था कि कैसे ऐसे को अप्रोच करना है जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स थी ऐसे राइटिंग की थी इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल वो उसमें मार्क्स आना बंद हो गया था मतलब जो बच्चों को आते थे पहले वो कम हो गया था फिलोसफिकल आ रहे हैं ऐसे तो ऐसे राइटिंग में मैंने पहले देख लिया था कि कैसे टॉपिक को मतलब कोई फिलोसफिकल हो गया जैसे अ शिप इज सेफ इन अ हार्बर बट इट इज नॉट मेंट टू बी देयर ऐसा हो गया तो फिर उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया कि कैसे कीवर्ड्स उससे पिक करने हैं कैसे लिखना है और ऐसे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा टाइम में देती थी कि इंट्रोडक्शन के लिए कि मैं अच्छे इंट्रोडक्शंस और मैं न्यूज़पेपर से पिकअप करती थी कि मेरे यूनिक रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कोई ऐसा आ जाए तो गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं या मतलब कॉमन एग्जाम्पल्स किरण बेदी का दे दिए तो कॉमन एग्जाम्पल से मेरा ये मतलब ये था कि मेरा एग्जाम्पल्स अलग हो और मेरे एग्जाम्पल्स मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन से आते थे जैसे मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी उसमें कैलाश सत्यार्थी जी आए थे तो उन्होंने अपनी स्टोरी नरेट की थी तो मुझे वो स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने वो अपने वर्ड्स में नोट करके रख ली और मैं वो उसको मैंने ऐसे में यूज किया था तो मतलब कुछ स्टोरीज इतनी अच्छी है खुद को ही लग जाती है कि वो अच्छे से वर्डिंग उसमें आ जाती है फिर जैसे मनु भाकर वाला जो एक एग्जांपल दी और मतलब कोई पद्मश्री अवार्डीज रहते हैं उसमें न्यूज़पेपर में उनकी स्टोरीज आती है अच्छे से या फिर आप यूट्यूब पे कुछ सुन सुन लेते हो उनका जैसे एक ऐसी रील आ गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कि कैलिपर्स मतलब वो अग्नि मिसाइल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और फिर उनसे मिलने एक डॉक्टर आए फिर उन्होंने वो मटेरियल देखा कि इतना लाइट मटेरियल था फिर वो डॉक्टर कलाम को उनके हॉस्पिटल लेके गए ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जहाँ पे वो कैलिपर्स जो पैर पे लगाते हैं तो वो 3 kgs के वेट के थे और मतलब उन्होंने फिर बोला कि ये जो अग्नि मिसाइल का जो मटेरियल है वो इतना लाइट है इतना स्ट्रांग है तो इससे हम कैलिपर्स बनाएंगे तो बच्चों को बहुत मतलब हेल्प होगी तो 3 kgs से कुछ 300-400 ग्राम्स का वो कैलिपर्स बन गए थे और वो बच्चे 1 हफ्ते में ही चलने लग गए थे और मतलब डॉक्टर कलाम ने वो ऐसे ही रील या उनके कोई लेक्चर में बोला कि दिस दिस आई कंसिडर हाईएस्ट हैप्पीनेस कि मतलब जो बच्चे दौड़ रहे थे पेरेंट्स के तो ऐसे कुछ स्टोरीज है जो मुझे बहुत अच्छी लग जाती है कि कहीं मैं सुन लूं या रील जैसे आप रील स्क्रॉल करते हो तो ऐसे कुछ देखो जो ऐसे में यूज हो जाए तो कोई ऐसे एपिसोड देख लो या न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा आ जाए जो आप उठा लो जैसे कैलाश सत्यार्थी की जो स्टोरी थी मैंने कौन बनेगा करोड़पति में सुनी थी तो ऐसा कोई लिखेगा नहीं सब मतलब नॉर्मल लिखे गए तो उनकी स्टोरी ऐसी थी कि वो गांधी जयंती का कोई ये इवेंट था गांधी जयंती का इवेंट और उन्होंने उनका मतलब
इक्वालिटी का मैसेज स्प्रेड करना था तो उन्होंने जो लोअर कास्ट कुक से खाना बनवाए थे और उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को इनवाइट किया था कि आप आओ और हमारे स्टॉल पे खाना खाओ ताकि एक इक्वालिटी का मैसेज स्प्रेड हो, डिस्क्रिमिनेशन हट जाए। तो कोई लीडर शो अप नहीं किया रात तक। फिर उन्होंने खुद खाना खाया रोते रोते रात में, और रात में वो घर पे गए। तो जब वो घर पहुंचे तो उनके यहाँ पे जो उनके हायर कास्ट कम्युनिटी के सब लोग जमा हो गए थे कि आपकी फैमिली को हम आउटकास्ट कर देंगे, आपके बेटे ने एक लोअर कास्ट वुमेन का कुक फूड खाया है तो आप लोगों का आउटकास्ट कर देंगे। तो फिर फैमिली का फिर ऐसे कुछ इसका प्योरिटी रिचुअल्स कराओ, इसको वापस प्योर कराओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सब प्योरिटी रिचुअल्स को, और उन्होंने बोला कि मैं अलग हो जाता, उनको बाहर एक स्टोर रूम टाइप में उनको रख दिया। फिर रात भर उन्होंने सोचा कि ये लोग कौन होते हैं मुझे कास्ट से निकालने के लिए, मैं अपने आप से कास्ट को निकाल देता हूँ। तो कैलाश शर्मा उनका सरनेम था, तो उन्होंने सरनेम ड्रॉप कर दिया और फिर ओवर द इयर्स उन्होंने सत्यार्थी सरनेम अडॉप्ट कर लिया। तो ये स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी और मैं इसको मोल्ड करके बहुत सारे एसेज में लिख पाती थी। तो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना या ऐसे थोड़ा अवेयर रहना, क्या मुझे एग्जाम में क्या मैं एग्जाम में यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं आईपीएल देखती थी तो एवरी डॉट बॉल पे 500 ट्रीज प्लांट होते हैं, तो मैं यही एथिक्स में यूज कर लेती थी। तो मतलब पूरा अवेयर रहो कि मैं क्या चीज है जो मैं अपने एग्जाम में यूज कर पाऊँ। और मतलब ऐसे के लिए मैंने यही ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, यूनिक इंट्रोडक्शंस किए। उसके बाद एक अप्रोच किया कि कैसे मुझे फ्लो बनाना है आंसर का। कोई भी आप क्लासेस करोगे आपको पता चल जाएगा कि फ्लो कैसा आता है, फ्रेमवर्क पता लग जाएगा। कंक्लूजन पे थोड़ा वर्क किया, तो ऐसे मतलब ऐसे में भी मतलब लास्ट ईयर मुझे 125 मार्क्स है जो अच्छे मार्क्स है, और इस बार 106 मार्क्स है। 106 अच्छे मार्क्स बोल रहे हैं इस बार। तो क्योंकि हर बार एक एवरेज स्कोर रहता है, जैसे पहले जीएस पेपर से हम बहुत नंबर आते थे, इस बार अभी 90 मार्क्स में आए तो आपके अच्छे मार्क्स, तो ऐसे वेरी करता है पेपर। जैसे इस बार ऑप्शनल में 262 तो 80 मार्क्स आर रियली गुड मार्क्स, पहले ये 300 आते थे, तो कई बार हर ईयर टू ईयर स्कोर वेरीज। और ऐसे में भी मैं एग्जांपल ट्राई करती थी कि मेरे थोड़े अलग रहे। अलग मतलब ये नहीं कि मैं एकदम किसी ने सुने हुए नहीं है वो नहीं लिखूं, पर जैसे डॉक्टर टेसी थॉमस का है जो इसरो में या वर्क करती है, इनका कोई न्यूज़पेपर में आ जाए तो मैं ये लिख के रखती थी कि कोई वुमेन के एग्जाम्पल हो गए, कोई अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स, तो ऐसे कलेक्ट करके रख। कि आपने मेंटरशिप तो सबसे लास्ट में कर लिया, जैसे आप थर्ड अटेम्प्ट मान लेते हैं, जैसे हम रेसिप्रोकेटिंग का जब मॉडल आंसर से जाते हैं तो फिर हम शायद कुछ एवोल्यूशन में फिर आप कैसे करते थे कि मैंने शायद तो लिंक करा है कि आप कैसे चेक करवाते थे? मतलब जैसे मैंने बोला मेरे ग्रुप थे, तो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेंस लिख रहे थे उस टाइम। तो मेरा ऐसा था कि मैं इनके साथ पढ़ाई कर लूं, और कोई आपके साथ पढ़ाई तभी करेगा जब आप भी सीरियस हो। अगर कोई आप सीरियस स्टूडेंट के साथ पढ़ोगे तो आपको सीरियसनेस रखना पड़ेगा। तो जो उस साल मेंस दे रहे थे, जैसे 3 महीने होते हैं, तो मैं उनके साथ अपना टाइम टेबल सिंक कर लेती कि ठीक है मैं भी आपके साथ करूंगी, तो मैं भी आपके आंसर्स चेक कर दूंगी, आप मेरे कर देना आंसर्स चेक। तो उनका भी बेनिफिट हो जाता था कि उनका भी टाइम स्लॉट में, क्योंकि उनको तो 3 महीने में करना है। तो ऐसे मैं मेंस वाले लोगों के साथ अपना अलाइन करके, जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मैं प्रिपेयर कर लेती थी। एक दूसरे का हम चेक कर देते थे आंसर्स कि कहाँ इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ कुछ कर सकते हैं। थोड़ा डिस्कशन हो जाता था। तो ऐसे मैंने किया। ठीक है? So I think if you have any personal questions after this, you can individually come and meet her. We'll put an end to this session. I think most of you people are not taking a break since morning. So I think it was insightful from Sabi, and I hope you have taken good inspiration and motivation, which will help you in the attempts that you are going to take. All right. Thank you so much, Sabi. Thank you everyone. Thank you everyone and all the best. Thank you.